So chapter 500, chapter 5, 37 shloka we will discuss. Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaaya Dhimai प्रद्युम्न निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये श्लोक हम लोग भगवान को प्रेयर में श्लोक को प्रेयर करते हैं, ये स्टैंडर्ड प्रेयर में आते हैं। तो ओम नमो भगवते, ये चतुर्विह को प्रणाम हम लोग कर रहे हैं। ट्रांसलेशन, लेट अस ऑल चैंट द ग्लोरीज ऑफ वासुदेव along with his plenary expansions प्रद्युम्न अनिरुद्ध and संकर्षण। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इसको याद करना चाहिए। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। Let us chant, all chant the glories of Vasudeva along with his plenary expansion प्रद्युम्न अनिरुद्ध and संकर्षण। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार चतुर्व्यूह को बोलते हैं। फर्स्ट कृष्ण से बलराम, बलराम से फिर ये फर्स्ट चतुर्व्यूह आते हैं, फिर उसके बाद में संकर्षण से नारायण आते हैं, नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह भी आते हैं। वो सेकंड सेट ऑफ चतुर्व्यूह जो है वासुदेव, फिर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। Purpose of Prabhupada ki joy. According to Pancharatra, Narayana is the preamble cause of all expansions of Godhead. There are Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha. Vasudeva and Sankarsana are on the middle, left and right. Pradyumna is on the right of Sankarsana and Aniruddha is on the left of Vasudeva. Vasudeva, Sankarsana, then Pradyumna and Aniruddha is left में. So they are known as the four heads, the camp of Lord Sri Krishna. This is a Vedic hymn or mantra beginning with Omkar, Pranab, Om इसलिए, and thus the mantra is established by the translational chanting process, namely Om Namo Dhivai, Dhimohi, etc. तो जितना वैदिक मंत्र है वो ओम से शुरू होता है। तो दिस इज द वैदिक hymns और मंत्र beginning with ओमकार प्रणव। ओमकार means भगवान का ये ओम प्रणव मंत्र, that is sound representation of Krishna, sound representation of Krishna। तो इसलिए वेद में सारे जो वेद है, वेद में सारे जो श्लोक है वो ओम से शुरू होता है। So the purport is that any transaction either in the field of fruitive work or in the empiric philosophy which is not ultimately aimed at transcendental realization of the Supreme Lord is considered to be useless. Naradi has therefore explained the nature of underlying devotional service by his personal experience in the development of intimacy between the Lord and the living entity by a gradual process of progressive devotional service. Such a progressive march of transcendental devotion for the Lord culminates in the attainment of loving service to the Lord, which is called prema, and different transcendental variegatedness called rasa or taste. Such devotional service is executed in the mixed form, namely mixed with fruitive work or empiric philosophical speculation. Now the question which was raised by the great rishi headed by Shonaka regarding the confidential part of Suta's achievement, so the spiritual master is explained herein by chanting of this hymn consisting of the 33 letters. And this mantra is addressed to the four deities of the Lord with his plenary expansions. The central figure is Lord Sri Krishna because the plenary persons are his decams, his heads decam. The most confidential part of the instruction is that one should always chant and remember the glories of the Lord Sri Krishna, the Supreme Personality Godhead, along with his different plenary persons, expanded as Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna and Aniruddha. These expansions are the original deities of all other truths, namely either Vishnu Tattva or Shakti Tattva. So, Dhimahi, Tubhyam, let us, Dhimahi means chant, let us chant, Dhimahi. Chant the holy name of the Lord, along with his expansions. इसलिए ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय च नमो संकर्षणाय च प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। तो 38 श्लोक में इति मूर्ति अभिधानेन कुछ बोले हैं तो मुझे थोड़ा दंडक नाम जो पंचरात्र के वो नारद पंचरात्र, नारद मुनि ने लिखा है पंचरात्र में, उसमें विधान क्या
पूजा का प्रोसेस पद्धति लिखा गया है। नारद पंचरात्र कैसे भगवान को पूजा करना, अर्चना करना है, ये ज्यादा इस टाइप का इसमें दिया गया है। डिटेल से पढ़ने से पता चलेगा, बट ओवरऑल नारद एक लिखे हैं पंचरात्र, नारद पंचरात्र बोलते हैं। उसमें पूजा पद्धति का, भगवान का कैसे हम अर्चना करते हैं, पूजन जो करते हैं, क्या क्या मेटेरियल देना है, कैसे उनको ऑफर करना है, तो ये अर्चन का प्रोसेस, अर्चन विधि या पूजा विधि, पूजा प्रोसेस को डिस्क्राइब किए हैं महात्मा ने। ओके, 38 श्लोक। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम सम्यक दर्शना पुमान। That is the actual seer who worships in the form of personal sound representation, the supreme person Godhead Vishnu, who is no material form purport. Our present senses are all made of material elements, and therefore they are imperfect in realizing the transcendental form of the Lord Vishnu. He is therefore worshipped by sound representation via the transcendental method of chanting. Anything which is beyond the scope of experience by our imperfect senses can be realized fully by this sound representation. A person transmitting sound from a far distant place can be actually experienced. If this is materially possible, why not spiritually? This experience is not a vague impersonal experience. It is actually an experience of the transcendental personality of Godhead, who possesses the pure form of eternity, bliss and knowledge. In the Amarko Sanskrit dictionary, the word murti carries import in the two-fold meanings, namely form and difficulty. Therefore, Amurtikam is the explained by Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakur as meaning without difficulty. Murti means difficulty and Murti also means form. The Amurtikam means without difficulty. The transcendental form of Lord of eternal bliss and knowledge can be experienced by our original spiritual senses, which can be revived by chanting the holy names, holy mantras or transcendental sound representation. Such sound should be received from the transparent agency of the bona fide spiritual master, and the chanting may be practiced by the direction of the spiritual master. That will gradually lead us near to the Lord. The method of worship is recommended in the Pancharatrika system, which is both recognized and authorized. The Pancharatrika system has the most authorized codes for transcendental devotional service. Without the help of such codes, one cannot approach the Lord. Certainly not by dry speculation. The Pancharatrika system is both practical and suitable for this age of quarrel. The Pancharatrika is more important than Vedanta for the modern age. तो इसमें भक्ति का कैसे पूजा करना है, भगवान को कैसे भक्ति करना है, उसमें ये प्रोसेस में दिया है पंचरात्रि का प्रोसेस। तो इसीलिए कलियुग में इसलिए बोल रहे हैं कि भागवतम एंड पंचरात्र, ये नारद पंचरात्र, इसमें भक्ति का सूत्र दिया गया है। भक्ति कैसे, भक्ति का डिफरेंट लिम्स के बारे में और कैसे करना है। तो पूजन इज वन ऑफ द लिम्स ऑफ भक्ति, तो उसमें भी डिस्क्राइब किया गया है। साउंड रिप्रेजेंटेशन का, साउंड प्रोसेस का बहुत इंपोर्टेंट दिया गया है। तो हमारे जो प्रेजेंट सेंसेस आर मेटेरियल एलिमेंट्स ये में है, बना हुआ है, एंड दे आर इम्परफेक्ट। इसीलिए हम लोग 4 प्रोसेस जो डिस्कस किए थे, एक्सेप्टिंग रिसीविंग नॉलेज, उसमें ऑल अदर डिफेक्टिव प्रोसेस, जैसे भाई डायरेक्ट परसेप्शन, लॉजिकल इन्फरेंस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो ये सब इम्परफेक्ट है। लेकिन साउंड शब्द प्रोसेस, साउंड रिविलेशन प्रोसेस इज परफेक्ट इन द सेंस दैट परंपरा माध्यम में हम सुनते हैं प्रॉपर सोर्स से, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं एज इट इज, तो नीचे जाता है फिर। इसलिए एवरी मेंबर ऑफ द चेन व्हिच रिसीव द साउंड वाइब्रेशन और दिस वेद और साउंड जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको एज इट इज पास करना है, तो देन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इम्प्योरिटी ऐड नहीं होगा। एज इट इज पालन करना है, एज इट इज ट्रांसमिट करना है। तो साउंड प्रोसेस में वैसे ही है, जो ऊपर से भगवान बोले उसको 4 परंपरा में आता है, उसका बाद में रिसीविंग करके फिर परंपरा से नीचे 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 नीचे
ये डिफरेंट लेवल में हो जाता है। इसलिए दैट इज द रियल राइट प्रोसेस ऑफ रिसीविंग नॉलेज। 39 श्लोक। इमं सो निगमं ब्रह्मन् अवित मधु मद अनुष्ठितम् आदान्मय ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन् भावं च केशव। Brahman, thus by the Supreme Lord Krishna, has entered fast with the transcendental knowledge of the Lord as inculcated in the confidential parts of the Vedas, then with the spiritual appliances, and then with his intimate loving service. Purport. Communion with the Lord by transmission of the transcendental sound is non-different from the above spirit Lord Krishna. It is a completely perfect method for approaching the Lord. By such pure contact with the Lord without offense of material conception, number 10 offense, thus prade. The devotee can rise above the material plane to understand the inner meaning of the Vedic literatures, including the Lord's existence in the transcendental realm. The Lord reveals his identity gradually to one who has unflinching faith, but both in the spiritual master and the Lord. जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनम। तो उसी का मीनिंग यहाँ पे दिया है लाइन में कि जो भगवान को और उनका गुरु को जितना उतना सामान भक्ति करता है तो उसका पास में भगवत ज्ञान ऑटोमेटिकली हृदय में प्रकाश होगा। मीनिंग ऑफ द वैदिक लिटरेचर इज आल्सो रिवील्ड, proper meaning, inner meaning of the Vedic literature, including the Lord's existence in the transcendental realm. The Lord reveals his identity gradually to one who has unflinching faith. तो जिसका both in the spiritual master and the Lord, इसलिए बोला तो भगवान का उनका गुरु का पूर्व में इतना स्पिरिचुअल भक्ति होना चाहिए, तभी देन वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाएगा। इंटरनल मीनिंग, इनर मीनिंग ऑफ द एनी शास्त्र विल बी रिवील्ड ऑटोमेटिकली इन द हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस श्लोक को याद रखना चाहिए। जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यैते ही कच्चा प्रकाशन्ते महात्मनम। हम अगर गुरु और कृष्ण को समान भक्ति, जैसे ट्रेन का दो पटरी पैरेलल चलता है उस टाइप का भक्ति करेंगे, खाली गुरु को नहीं खाली कृष्ण को नहीं, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे कृष्ण को उस टाइप का गुरु को भक्ति करेंगे तब क्या होगा ना, देन जो इंटरनल मीनिंग, इनर मीनिंग ऑफ शास्त्र विल बी रिवील्ड। तो तस्यैते ही कथित अर्थ जो मीनिंग रियली मेजर मीनिंग ऑफ शास्त्र, तस्यैते ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनम, तो उस महात्मा को ये प्रकाश हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान का हम लोग भक्ति करेंगे, साथ में गुरु का समान भक्ति करेंगे, तभी हम शास्त्र को समझ सकते हैं। ये सब शास्त्र हमारा अंदर में रियलाइजेशन आ जाएगा। या शास्त्रों को पढ़ नहीं, कभी कोई पढ़ के समझ में नहीं आएगा तो कल कुछ नहीं, सुन के भी नहीं समझ में आता है, लेकिन फिर भी ये रियलाइजेशन आ जाएगा शास्त्र का मीनिंग क्या है। एक ऐसे ऑथेंटिक स्टोरी है या नहीं है, जो भी है, हम एक स्टोरी सुने थे, तो इसको हम याद करते हैं कभी कभी। एक गांव में, जैसे एक गांव में एक बार एक गुरु आए थे। वो गुरु क्लास दे रहे थे सबको, मतलब एक साधु सबको क्लास दिए। तो उस टाइम में एक गाय चराना वाला है, वाला कपिला, उसका नाम कपिल गया और सुना कि गुरु महाराज आए हैं या साधु आए हैं, ये सबको अच्छा भक्ति मार्ग में बता रहे हैं। तो इसलिए क्लास का बाद में, भागवत क्लास हो रहा था, क्लास का बाद में कपिला गया। कपिला जाके वो साधु को बोला कि गुरुदेव, हम तो पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम तो गाय चराते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि शास्त्र को जानने के लिए, और शास्त्र को जानेंगे, भक्ति करेंगे, कैसे करेंगे, आप थोड़ा कृपा करिए। तो गुरु देखा कि ये बहुत अनपढ़ है, वो समझ में भी इसको नहीं आता है, तो क्या करेगा, तो ये तो कुछ नहीं कर सकता है, ऐसे बोल सोच के, पर ठीक है एक मंत्र तुमको देता हूँ। उसका कान में दे दिया एक मंत्र, बोलते इसी मंत्र को जप करो तो देन आपको सारे चीज पता होगा। हाँ, भागवतम ये जो भी शास्त्र सब पता है जाएगा। तो इसलिए वो मंत्र को, वो थोड़ा वो अथर्व मंत्र नहीं है,
गुरुदेव ऐसे ही जो है साधु आउट ऑफ ऐसे सोचा क्या है इसको कुछ भी मंत्र दे दिया, मतलब दैट इज नॉट ए रियल मंत्र। अनाप शनाप एक गाली का वो वर्ड हम लोग बोलेंगे नहीं, वो गाली का मंत्र, जैसे गाली देते हैं किसी को, या जो है वो रफ लैंग्वेज में एक वो मंत्र को बोला तुम यही मंत्र को जपा करो, मैंने ये नेग्लेक्ट करके उसको बोल दिया। कुछ साल चला गया। फिर साधु जब वो रिटर्न हुआ कुछ दिन के बाद में उस गांव में, तो उस टाइम देखा कि गांव में पहुंचा, देखता है कि एक आदमी दाढ़ी फाड़ी हो गया, दाढ़ी फाड़ी रखा है साधु, और भागवत या शास्त्र का ज्ञान सबको वितरण कर रहा है, क्लास दे रहा है। तो क्लास का बाद में उस जो है एक उसको देखा कपिला, वो कपिला देखा जो गुरुदेव आई गए हैं, तो क्लास के बाद में गुरुदेव का पास में जाता है, तो जाकर प्रणाम करते हैं। तो साधु उस टाइम आप कौन है, क्योंकि उस टाइम में इसका कपिला दाढ़ी फाड़ी नहीं था, अभी दाढ़ी फाड़ी बढ़ा दिया है, एकदम है हो गया। तो शास्त्र ज्ञानी, तो बोला आप इतना बढ़िया शास्त्र बता रहे हैं, तो हरियू मैंने आप कौन है, तो ये बोला प्रणाम करके गुरुदेव अब मैं आप ही का शिष्य हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है? नहीं, नहीं मैं अभी कपिला है जिसको आप ये एक मंत्र दिया थे, जो कि जो मंत्र जो दिया था एक्चुअली ये एक ऑब्सिन लैंग्वेज का है, ऑब्सिन लैंग्वेज, वो मंत्र नहीं है एक्चुअली, ऑब्सिन लैंग्वेज, बोला तुम इसी को जप करो। ये गुरु का पास में इतना ठे था, उसी मंत्र को जपते गया। तो अभी गुरु जो है आश्चर्य हो गए, चकित हो गए, अरे वो कपिला जो कुछ पढ़ाई नहीं किया था, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सोचा कि मैं आश्चर्य हो गया, इस तरह का मैं तो ये रियल मंत्र नहीं दिया था, कोई गाली गुलस का ऑप्शन लैंग्वेज उसको दे दिया था, तो तुम कैसे हो गया इस टाइप का, बोल के पूछा। आप जो मंत्र दिए था उसको मैं अच्छा से ध्यान से जप किया, उसका जप करने से मेरा अंदर में कुछ भक्ति भाव आया, और ये शास्त्र भी हम जब पढ़ा या शास्त्र को मैं समझ में आ गया सब कुछ। अच्छा, तब तो गुरुदेव समझ में आया, जो वो फेथलेसली दिए थे, लेकिन जो शिष्य है उसी लैंग्वेज को वो जो वर्ड दिया था या जो मंत्र दिया था, तो इट इज नॉट ऑथराइज मंत्र, तो उसको लाइफ इम्प्लीमेंट किया, अपना ध्यान से जप करते गया कि विदाउट डाउट, क्योंकि वो लैंग्वेज कोई सुनेगा तो सोचेगा ये फालतू गाना ये कर रहा है, लेकिन उसको सुनते और उसको जप करते जपते जपते उसका हृदय में दिव्य ज्ञान आ गया। मेरे को अभी याद आया, गुरुदेव कृपा से एक ये सुना था, यहाँ पे जैसे बोला ना, जस्य देवे जस्य देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्य ते ही कथा अर्थ प्रकाशन्ते महात्मानम, उसका एक मीनिंग यहाँ प्रपंच डायरेक्टली लिख दिया कि जिसके भक्ति करेगा भगवान को और गुरुदेव को समान भक्ति करेगा, तो उसका पास में जो है क्या होगा ना, शास्त्र जो कॉम्प्लिकेटेड शास्त्र है, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है शास्त्र का मीनिंग जो क्या है, या शास्त्र का मीनिंग क्या है, ऑल शास्त्र का वेद का मीनिंग क्या है, वेद बड़ी मुझे भगवान को जानना है, भगवान को प्यार करना है, भगवान को सेवा करना, ये इसको अंदर में रिवील हो जाता है। तो ये बात ये जो स्टोरी है, मे बी स्टोरी इट माइट इट मे बी करेक्ट और रॉन्ग, वट एवर मे बी दी, बट थिंग इज दैट इसमें वही प्रेजेंट होता है कि अगर गुरुदेव जो वर्ड बोला, गुरुदेव जो मंत्र बोला, उसको अगर ध्यान से हम लोग उसको सेवा ऐसा से करेंगे, तो दिव्य ज्ञान जो है ना हृदय में प्रकाशित हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो ज्ञान आ ही जाएगा कि वेद क्या होता है, वेद का सारांश क्या होता है, और श्लोक को याद नहीं रहेगा, या जो भी श्लोक पता भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन वेद का सारांश क्या है उसको पता लगा। अद्वैत बहुत लोग ज्ञानी है, वेद को कितना भी परिचय है, सोकल ब्राह्मण है, वेद को कितना बार अध्ययन किया, लेकिन रियल मीनिंग पता नहीं चलता है। उससे हम लोग पता चलता है कि जैसे ज्ञानी लोग है, ब्राह्मण लोग है, जो यज्ञ यज्ञ ब्राह्मण, यज्ञपति, यज्ञ ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे, एक बार ये जो है कृष्ण लीला में है, तो जो कृष्ण गो वाला साथ में कृष्ण बलराम गए थे गाय चराने के लिए, तो बच्चे लोग को भक्त लोग जो बच्चे थे उनको भूख लगा है, तो इसीलिए कृष्ण बोला ठीक है तुम जाओ, वो यज्ञ ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे हैं दूर में, कुछ दूर में, वहां जाके उनको कुछ भोजन मांगो। तो ये गए, बोले कृष्ण बलराम भेजे हैं और हम लोग का थोड़ा टिफिन लाया नहीं है, हमको भूख लग रहा है, तो सबको लिए कुछ खाना दीजिए। तो यज्ञ ब्राह्मण को ज्ञान लेवल में थे, ज्ञानी, वो यज्ञ करने वाला है, लेकिन बोला यज्ञ तो शुरू नहीं हुआ, अभी क्या प्रसाद कहाँ मिलेगा, अगर उसको चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, उसके बाद में यज्ञ होगा, भोग चढ़ाएंगे तब तो प्रसाद मिलेगा, अभी नहीं, अभी जाओ।
तो इसीलिए वो रिटर्न कर दिए। लेकिन कृष्ण बलराम फिर बोले कोई बात नहीं है, एक बार फेलियर हो गया कोई बात नहीं, दोबारा हम ट्राई करते हैं। तो दोबारा तुम जाओ, उनका जो यज्ञ पत्नी, जो ब्राह्मण पत्नी है वो घर में है, उनका पास में जाओ, जो कृष्ण बलराम भेजे हैं हम लोग को कुछ प्रसाद दीजिए, हम लोग भूख भूख लग रहा है। तो गया, जाने के बाद में ब्राह्मण पत्नी का हृदय में भक्ति है, ये तो ब्राह्मण शौक ज्ञानी है, ये ब्राह्मण पत्नी भक्ति है, ज्ञानी और भक्ति का डिफरेंस है। तो इसलिए उनका ऑटोमेटिकली वो जो है तुरंत कुछ रसोई किया, फटाफट करके, तो अरे कृष्ण बलराम बोले मतलब ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू फीड देम, सर्व देम, ये बहुत अच्छा बात है। तो वो भाग भाग के लेके गया, साथ में चलो 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 लेके चलते हैं। जाके वो कृष्ण बलराम और सब जो बच्चे लोग को वो खाना खिलाया। तो और उस टाइम में जो लेके गए तो कृष्ण बोले थे, "भाई आप लोग क्या किया? आप उसका ब्राह्मण आपका पति को पूछ के आया? आपका हम लोग तो भेजा था आपका पति के पास में, वो तो मना कर दिया, अभी रेडी नहीं है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं तो नहीं दे सकते हैं। अरे आप लोग कैसे दे, नहीं बोल के उनको चलाया। तो देन वो बोला कोई बात नहीं है, आप हम तो आ गया, आप तो जो बोला है आपको भूख लगा है तो हम लोग आ गया। तो इसीलिए अभी हम जाएगा नहीं, आपका पास में रहेगा, क्योंकि हमारा पति को पूछा नहीं, पति जाएगा तो हमको गाली देगा, हाँ हमको मानेगा नहीं, तो इसलिए हम नहीं जा सकता है रिटर्न। जैसे गोपी लोग का ऐसे भगवान बोले थे, तो उस टाइप का यज्ञ पत्नी। तो लेकिन भगवान बोले कोई बात नहीं है, तुम लोग अच्छा काम किया है और भक्ति किया है तो कोई बात नहीं, तुम जाओ, रिटर्न होके जाओ, मैं एश्योरेंस देता हूँ, तुम्हारा पति लोग आपको कुछ नहीं बोलेगा और एक्सेप्ट करेगा। तो फिर रिटर्न होके गए तो पति लोग इन लोग को मिल के फिर, अरे उनको उस टाइम में उनका दिव्य ज्ञान फिर रियलाइज हुआ उनका अंदर में, भगवान जैसे उनको कृपा किए कि ये रियलाइज कर सकते हैं। तो देन उनका रियलाइजेशन आया, अरे हम यज्ञ करते हैं किस लिए, यज्ञ का अधिकारी तो भगवान कृष्णा विष्णु है, उन्हीं के लिए करते हैं, वो खुद मांग रहे हैं। जैसे बामन देव आए थे यज्ञ, उसमें शुक्राचार्य मना कर रहा है कि आप तो ये आया सब ले जाएगा, उसके लिए तो बड़ी बात बोले, उसी के लिए तो हम यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के लिए खुशी के लिए, तो जो है उनका है। तो इसलिए ये जो यज्ञ कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, अरे भगवान के लिए कर रहे हैं। लेकिन उनको ज्ञानी लेवल में थे, इसलिए सोकवर्ड ज्ञानी है, इसलिए वो ग्रहण, वो बोला जब तक यज्ञ नहीं होगा तब नहीं सकते। इसलिए इसको बोलते हैं नियमाग्रह, जैसे बोलते हैं नियम ग्रहण करना है, लेकिन दो पर्पस है। नियम का पर्पस क्या है बताना चाहिए, या नियम को बिल्कुल ग्रहण नहीं करना भी नियमाग्रह है, और नियम को ग्रहण करना है, आग्रह आग्रह करना है, ग्रहण नहीं करना, और आग्रह के साथ में ग्रहण करना है, लेकिन पर्पस पता नहीं है, वो भगवान को खुशी करना, वो पर्पस पता नहीं है। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल भी बहुत सारा देखते हैं, हैं? तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कभी कभी यज्ञ होता है, तो एक एक लोग तो यज्ञ इतना 10 घंटा 15 घंटा यज्ञ करेंगे, उस टाइम में जो है, जो रियल टाइम में यज्ञ खत्म होता होने से कुछ करना है, सपोज भूमि भूमि पूजन हुआ, तो अब अगर यज्ञ करते करते टाइम चला गया भूमि पूजन का, एक स्पेसिफिक टाइम है, तो लेकिन 10 घंटा यज्ञ ही कर रहा है, वो टाइमली करना ठीक है कर रहा है, लेकिन भूमि पूजा का टाइम चला जाता है, तो इसलिए देखना पड़ेगा कि पर्पस क्या है। तो अभी लोग हम लोग ऐसे ही भी देखा। तो इससे कुछ मीनिंग पता चलता है कि कैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। गुरु को और कृष्ण को समान भक्ति करेगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड शास्त्र का जो मीनिंग ऑटोमेटिकली या इजीली हृदय में प्रकाशित हो जाता है, रिवील हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक लाइन के जैसे लॉर्ड रिवील्स his identity gradual to one who is on teaching faith both in spiritual master and in the Lord. उसका पहले बोला by such pure contact with the Lord without offense material conceptions numbering 10 अपराध है, devotee can rise above the material plane to understand the inner meaning of the Vedic literatures including Lord's existence in the transcendental realm. Lord reveals, कैसे पता चलता है ना, भगवान को रिवील करते हैं। दिव्य ज्ञान को हमको चाहने से हम पढ़ के समझ नहीं सकता है। जो
अगर हम भागवत पढ़ के अगर समझ लिया, गीता भागवत पढ़ के अगर उसका ट्रू मीनिंग को हम लोग समझ लिया, तो वो तो सोचेगा, तो वो तो ज्ञानी इतना इतना आसान नहीं होगा समझने के लिए। इसलिए प्रभुपाद बोला, इफ यू नो संस्कृत देन यू कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता। सो इट इज जस्ट लाइक इफ यू नो इंग्लिश देन यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स, ऐसे प्रभुपाद बोले। सपोज फिजिक्स को इंग्लिश में लिखा गया है, आपको इंग्लिश पता है तो आप फिजिक्स को समझ जाओगे क्या? ऐसे ही प्रभुपाद बोला, अगर सही बात है, अगर आपको संस्कृत पढ़ लिया, संस्कृत को जो पंडित हो गया, संस्कृत पढ़ सकता है, श्लोक पढ़ सकता है, तो उसको अगर भगवत का मीनिंग या शास्त्र का मीनिंग अगर पता चल जाएगा, तो सेम बात है, वो हो नहीं सकता है। तो इसलिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू ओनली संस्कृत माइट हेल्प टू अंडरस्टैंड यदि वर्ड्स तो है उसका है, लेकिन रियल मीनिंग को उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ओनली संस्कृत का माध्यम में कोई समझ नहीं सकता है, श्लोक को पढ़ के कोई समझ नहीं सकता है। उसका श्लोक को मीनिंग को हम लास्ट टाइम आप लोग को भी शेयर किया था ना, जो एक डिवोटी को हम बोले थे, तो एक फल दिए थे गौर पूर्णिमा में, तो बोला कि मैं बोले सोचा कि मंदिर में वो देने के लिए सोचे थे, उन्होंने आप ही लीजिए। बोला कि ये आप अच्छा काम किया कि आप जानते हैं भक्त भी भगवान को पहले ऑफर करेगा, गौर नीचे को हम रखे हैं उनको ऑफर करेगा, उसका बाद में हम लेगा। दैट मीन्स आप भक्त को दिया तो वो डायरेक्टली नहीं खाएगा, तो भगवान भी खाएंगे, तो इस टाइप का बोल देते। तो इसीलिए बोला ये सब रिलेशन जो आता है वो कैसे आता है ना, आप किए थे, आपका पिताजी का श्राद्ध ये सब किए, अच्छा किए, पिता माता का कृपा से, गुरु का कृपा से, शुद्ध भक्तों का सबका कृपा से आपको ये रियलाइजेशन आता है। तो इसलिए हम लोग को भी देखना पड़ेगा, हम लोग खुश नहीं करने के लिए, आपको समझ में नहीं आया कोई बात, जैसे सपोज एग्जाम्पल है, क्लास में बैठना है, हमको कुछ समझ में नहीं आता, पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इटसेल्फ क्लास में सुनना, रेगुलरली सुनना, इट बिकम अ हैप्पीनेस फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर, या परंपरा से गुरुदेव बताया तो हम लोग उसको सुनना है। तो इसलिए सारे मीनिंग को पता होगा ऐसा नहीं, लेकिन जो रियल मीनिंग है, शास्त्र का इनर मीनिंग है, जो पर्पस क्या है, उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है कि सारे श्लोक हम पढ़ते हैं जितना उसका मैंने 1/1000 पार्ट, 1 लाख पे एक बार श्लोक को भी याद नहीं रहता है। श्लोक को याद रहना नहीं रहना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन श्लोक क्या है नहीं है उसका मीनिंग को पता होना, पता कैसे पता होगा, वो अपना बलबूत में नहीं हो सकता, ज्ञान का माध्यम में नहीं हो सकता है, भक्ति का माध्यम में ही इसको रिवील हो सकता है। भगवान कृपा करेगा, गुरुदेव कृपा करेगा, तभी शास्त्र का रियल मीनिंग रिवील होगा। रिवील होगा मतलब आई विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट वन। तो हम लोग भी लास्ट डे बिफोर यस्टरडे वी आर कमिंग, गोविंद प्रभु, माय सेल्फ एंड संजय प्रभु, तो वी आर डिस्कसिंग द सेम ट्रेन अराउंड 2 आवर्स 3 आवर्स। तो संजय प्रभु कुछ बता रहे थे, संजय प्रभु ने, तो एक्चुअली डिफरेंट भक्त, डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग से क्या है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा 3 घंटा डिस्कशन में मतलब देखने मिलेगा कि सारे कंफ्यूजन, ये भक्त क्या ऐसे क्यों किया, वो भक्त ऐसे क्यों किया, ऐसे पूरा कंफ्यूजन होके लास्ट में कोई समरी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर एक भक्त के लिए आपका भक्ति होगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज टेलिंग एंड किसी लिए क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको पूछने से भी आपको रियलाइजेशन आएगा। तो यही है, क्योंकि शास्त्रों को मीनिंग को समझना इतना आसान नहीं है, ये भूल भुलैया में फंसा देगा। तो इसीलिए इसमें रियल मीनिंग को पाना मतलब इतना आसान बात नहीं है। वो सिर्फ गुरुदेव और कृष्ण को समान भक्ति करेंगे तो उन लोगों का कृपा से ये शास्त्र का मीनिंग को रिवील होगा। मैं बार बार ये पॉइंट में इतना अराउंड 15-20 मिनट्स डिस्कस किया, इसलिए किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एग्जाम्पल भी जैसे दिया, हम भी सुने थे, एक जैसे ग्वाला को अगर कुछ मंत्र दिया जाता है, वो मंत्र 28 मतलब प्रॉपर शास्त्र का मंत्र भी नहीं था, लेकिन उस मंत्र में उनका फीलिंग्स था कि ये गुरुदेव दिया था, उसको भी पता था कि ये जो मंत्र दिया ये तो यूजलेस मंत्र है, मतलब अगर वो सोचता है ये यूजलेस है, लेकिन उसका फेथ था कि गुरुदेव बोला इस मंत्र को ऐसे ही करो, जब करो तो आपका परफेक्शन हो जाएगा, तो उस वार्ड में भरोसा था। तो इसलिए गुरुदेव को एज इट इज ग्रहण किया विदाउट एन डाउट और विदाउट एन डिले। वो पूछा नहीं, गुरुदेव आप इस टाइप का मंत्र कैसे बोलते हैं, ये कहीं पे है क्या? यस वी कैन आस्क, शास्त्र में है या नहीं है हमको पूछना चाहिए, तो नहीं है, लेकिन इस एग्जाम्पल में था इतना सरल था, सरलता ही वैष्णव होता है, इसलिए भगवत प्राप्ति हुआ उसको। कुछ भी गुरु बोला उसको विदाउट डाउट वो इम्प्लीमेंट किया, दैट इज रियल सीक्रेट। कि उसको भी पता था वो जो लैंग्वेज बोला
वो लैंग्वेज उसको पता नहीं ये कौन सा लैंग्वेज बोला है सर, एक रास्कल टाइप का लैंग्वेज, नॉनसेंस लैंग्वेज, ऑब्सिन लैंग्वेज उसकी यूज करा था। तो वो उसी का फैद करते हुए उसको रिवील हो गया। कैसे रिवील हो गया? इसीलिए इतना आसान है। थैंक यू दैट द्विजय बंधु, द्विजराज प्रभु, द्विजय बंधु प्रभु जॉइन टुडे। बट ये शास्त्र का यही मीनिंग आएगा, हम सुनना है। हम लोग जिसका गाइडेंस में है उसको खुश करना है, और उसको समझ में आए नहीं आए बैठना पड़ेगा। कुछ तो धीरे धीरे समझ में आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। कहाँ से हम बता रहे हैं, ये भागवतम का इस श्लोक में फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर में 40 श्लोक में बोल रहे हैं। हो सकता है बहुत लोग उसको गीता का भी प्रॉपर हम लोग पढ़े भी नहीं होंगे, तो लेकिन इनिशियली समझने के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, पर ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम उसको पढ़ेगा, सुनेगा, धैर्य पकड़ गए, वैसन से उत्साह निश्चय धैर्य, तब समझ में आएगा धीरे धीरे। क्योंकि हम किसी का दिया हुआ वचन, किसी का दिया है वर्ड, इंस्ट्रक्शन को ट्राई कर रहे हैं फॉलो करने के लिए। हमारा जो सीनियर पर्सन गाइड है, गुरुदेव है, जो बोलते हैं तो वो रिवील होगा देन। तो इसलिए हम लोग का अभी रिसेंटली सारे भक्त गए थे महाराज के मिले हैं, एंड महाराज भी वही बोले भाई इंस्ट्रक्शन तो शास्त्र में दिया गया है, हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। वो बोले हम लोग पूछा, हमारा बी कृष्ण को पूछा कुछ इंस्ट्रक्शन दीजिए, तो महाराज ने बोला इंस्ट्रक्शन क्या हम देंगे, आप शास्त्र को पढ़ो, लेकिन रेगुलरली पढ़ो, प्रभुपाद को किताब को ठीक से पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, और आपको जो उसी से इंस्पिरेशन जो मिलेगा आप उसी से सेवा करो। हाँ, हम इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी भगवान दे दिया, कृष्ण अर्जुन को दिया, सेम इंस्ट्रक्शन है, कोई नया इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम उसको क्या उसी को रिपीट कर सकते हैं। बट ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय कृष्ण हिमसेल्फ, इंस्ट्रक्शन हमारा थोड़ी होता है। सिमिलरली भक्ति भगवान कृपा किसका होता है, गुरुदेव का कृपा किससे कहां से आता है, कृष्ण से आता है। कृष्ण का कृपा भगवान शुद्ध साधु का हिसाब से माध्यम से आता है हमारे पास में, लेकिन कृपा तो भगवान का ही कृपा ही होता है। तो इसीलिए शास्त्र का है, इसका जो है गुरुदेव का प्रति प्रयत्न रहेगा और उनका वार्ड को एजिटिव पालन करेगा, उनका भक्ति करेगा, तो कृष्ण को भी सेम भक्ति करेगा, तब ये शास्त्र का रियल मीनिंग रियलाइजेशन आएगा। ये इसी के लिए हम 15 मिनट्स इसका ऊपर में डिस्कस किया विथ सो मेनी एग्जांपल्स। फिर भी अगर किसी का डाउट है तो इसका ऊपर में बताना चाहिए। इसलिए गुरु जितना है कृष्ण जितना है, और गुरु ऑलमोस्ट इक्वल लेवल है इन दैट सेंस। ओनली सेव्य भगवान है, सेवक भगवान। कृष्ण सेव्य भगवान, उनको सेवा किया जाता है। गुरु बलराम है, वो सेवक भगवान होते हैं। तो डिफरेंस वही होता है सेव्य और सेवक में, अदरवाइज दोनों भगवान है, दोनों का 100% क्वालिटीज है जैसे बोलते हैं। तो उसमें आदि गुरु है बलराम, उनका परंपरा में कृष्ण का से आया है। तो ये ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। हम लोग सोचते हैं गुरु हमारा, जैसे हम लोग देखते हैं इस शरीर धारण किया है, मेटेरियल बॉडी है उनका, हम सोचते हैं मटेरियल है, लेकिन वो मेटेरियल स्पिरिचुअल हो चुका है। वो जो बॉडी है दैट हैज बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड, फुली स्पिरिचुअलाइज्ड। जैसे आग में अगर लोहा को डालते हैं तो उस टाइप का देयर बॉडी हैज बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। हमें प्रभु बोलते हैं कि हम गुरु महाराज का जो टॉयलेट जाते हैं सफाई, उसके बाद में सफाई करते हैं, तो बोलते हैं गुरु महाराज टॉयलेट से आने के बाद में हम उस टॉयलेट में जाते हैं सफाई करने के लिए, और जाते हैं तो उस टाइम में वहां से हम लोग चंदन का या उस टाइप का बहुत अच्छा सेंट आता है। मतलब आप समझ रहे होंगे, जो हम लोग बाजियों बोल के बोलते हैं, जो हमको गंध देता है, बदबू देता है, लेकिन शुद्ध साधु का वहां पे जो है सेंट आता है। ये फैक्ट है, ये कोई कहीं से गप नहीं, स्टोरी नहीं बोल रहे हैं, कि प्रभु उनका जो है बोल रहे थे, उनका जो रियलाइजेशन है उस प्रैक्टिकली वही बोल रहे थे। तो इसी से समझ में आ जाएगा गुरुदेव का जो शुद्ध साधु का शरीर स्पिरिचुअलाइज हो चुका है, परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है, वो कभी ब्रेक नहीं होगा। हम लोग का मैग्नेट, अगर मैग्नेट का पास में लोहा रहेगा सब टायर, कुछ जितना टाइम रहेगा तो मैग्नेट बनेगा, लेकिन बार बार रहते 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 बहुत दिन रहने का बाद में वो स्पिरिचुअल फुल्ली स्पिरिचुअल रहता है, फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाता है। इसलिए ये एक्चुअली शास्त्र को इसी में ही मीनिंग है। मतलब हम लोग गुरु का अगर बात को समझ गया, गुरु का आशीर्वाद लेके हम गुरु की सेवा कर लिया, उसी में वही बोलेगा जगत जीता, वो ही कैन कंक्यर द होल वर्ल्ड, उसमें है
हम लोग अपना इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट अपना मतलब भगवान का दिया हुआ ये ऋषिकेश को कंट्रोल कर, लेकिन वो इंद्रिय को कंट्रोल करने के लिए गुरुदेव का कृपा नहीं होगा तो इंद्रिय भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। गीता में दिया 13 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, 8 to 12 में पढ़े हैं हम लोग, इसका एम्फेसिस भी किया था कि कैसे गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन से, कृपा से कैसे हम कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो 13 चैप्टर में 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज में दिया गया ना, तो पहले भी पता है हम लोग पढ़े, हमारा टीचर उसको दिखाया था हमारा टीचर वो लाइन को प्यार से खोल कर दिखाया, समझो इसमें क्या लिखा गया है। हाँ? किसी को मालूम है पढ़ाए तो हम लोग कहाँ पे लिखा है? 13 चैप्टर 8 to 12 भगवद गीता। जैसे अमानित अदम्भितम, तो इसमें अहिंसा शांति आजवम आचार्य उपासना शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहम इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार जन्म मृत्यु जराव्याधि दुख दर्शनम असक्तिर अनभिसंग पुत्र दारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट पशुपतिषु मयि चरण्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी वियुक्त देश सवित्तम आरति जन संसादी अध्यात्म अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानात् दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। वहीं पे कृष्ण को जितना भक्ति करना है, सिमिलर भक्ति आचार्य उपासना करना है। तो ये नॉन ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंपलिसिटी, क्लीननेस, स्टिलनेस, सेल्फ कंट्रोल, these are the objects of self gratification. सिंप्लिसिटी पढ़ते हैं ये लाइन में। सिंप्लिसिटी मीन्स जो सरलता, मीन दैट विदाउट डिप्लोमेसी वन शुड बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट ही कैन डिस्क्लोज द रियल ट्रूथ इवन टू एन एनिमी। एज फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आचार्य को ग्रहण करना कैसे लिखा है, देखिए आचार्य उपासना, दैट इज एसेंशियल बिकॉज विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन द स्पिरिचुअल साइंस। विदाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर one should approach the spiritual master with all humility and offer him all services so that he will be pleased to bestow his blessings upon the disciple. Because a bona fide spiritual master is a representative of Krishna. If he bestows any blessings upon his disciple, that will make the disciple immediately advanced without the disciples following the regulative principles. अगर डिसाइपल्स अगर रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाता है, फिर भी भाई स्ट्रेट मीनिंग है, मैं भाई डुअल मीनिंग नहीं पता है, बट ये जो स्ट्रेट मीनिंग यहाँ लिखा गया है, बिकॉज ये बना पड़ लोग इसको घुमाएंगे, फिर हमको घुमाने का नहीं आता है, तो डायरेक्ट जो बोला उसको पढ़ो। सूर्य कृष्ण सूर्य समझ घुमाने का क्या बात है? लोग इसको घुमा घुमा के अलग अलग कुछ रिपीटेशन देते हैं। बहुत सारा वक्त है, मैं देखा हूँ इसी को घुमाएंगे फिर, लेकिन प्रभुपाद मना किया कि घुमाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो लिखा है उसको समझो। बिकॉज ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज रिप्रेजेंटेटिव कृष्णा, तो ये शुद्ध भक्त है, गुरु है, वो क्या है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। इफ ही बिस्टोज इन ब्लेसिंग्स अपॉन हिज डिसाइपल, अगर वो किसी डिसाइपल के ऊपर ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दे दिया, तो क्या होगा? दैट विल मेक द डिसाइपल इमीडिएटली एडवांस्ड। तो उनको आशीर्वाद देगा तो ये इमीडिएटली एडवांस कर जाएगा। कौन? भक्ति में बढ़ जाएगा, जो है उसका डिसाइपल, इमीडिएटली एडवांस विदाउट डिसाइपल्स फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हो सकता है नो मिटिटी, नो टेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। सेकंड हो सकता है, ये भी नवांग भक्ति में रेगुलेटरी प्रिंसिपल होता है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदना बाद श्रवण दास्य पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। श्रवण कीर्तन ये बिना भी हो सकता है, बिना श्रवण करते भी हो सकता है, इसका मतलब बिना फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी हो सकता है, मतलब। और कैसे बढ़ जाएगा? फिर बढ़ जाएगा तो और दूसरा और सेकंड मीनिंग बोला, और नहीं तो और the regulative principles will be easier for one who has served the spiritual master without reservation. हम गुरु का सेवा किया विदाउट रिजर्वेशन, मतलब करें नहीं करें, ये कपिला जैसे है।
कपिला बोल दिया, कपिला को बोल दिया कि ये लैंग्वेज इसी को जॉब करते रहो, वो रिजर्वेशन नहीं है उसका। अरे ये लैंग्वेज ठीक तो नहीं है, ऑप्शन लैंग्वेज, इसको क्या जॉब करेगा क्या? तो इसको बोलते गया, लेकिन उसी को फेच करके करते गया। तो देन ये बोला कि रेगुलेटरी प्रिंसिपल इजी हो जाएगा। सपोज हमारा 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, श्रवण इत्यादि, ये इजी, इतना इजी नहीं होता है करने के लिए। सर टाइम नहीं है हमारे पास में, हम दिन भर इतना बिजी है, अदरवाइज हमारा सेंस इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, ये सारी डिफिकल्टी देते हैं, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, गुरु को खुश कर दो, तो गुरु कृपा कर देंगे तो रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी इजी हो जाएगा फॉलो करने के लिए। और बाई चांस भी कोई कभी कभी मिस हो जाता है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं भी कर पाता है, गुरुदेव को खुशी कर दिया, उनको वो ब्लेसिंग कर दिया, तो आप भक्ति मार्ग में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। यही तो मीनिंग बोल रहा है हम उसको, या कोई दूसरा मीनिंग निकाल सकता है, वो निकाल रहे हैं कहाँ कहाँ पे लोग। हम इसको जो बोलते हैं लोग दूसरा कुछ इंटरप्रिटेशन देते हैं, पता नहीं, लेकिन हम तो टीचर यही बताया था, जो डायरेक्ट मीनिंग है वही है, लेकिन इसको कोई घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे। और जलेबी जैसे, तो कॉम्प्लिकेटेड पर्सन का काम है वो जलेबी घुमाना, कॉम्प्लिकेटेड। तो सिंपल आदमी जो लिखा गया उसी को सिंपल एज इट इज सुनेगा उसका। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? आचार्य उपासना कितना इम्पोर्टेंट है, तो इस आचार्यों को कैसे हम खुश करना है, तो यही देन ऑटोमेटिकली शास्त्र का मीनिंग सब रिवील होगा, हृदय से आ जाएगा और दिव्य ज्ञान आएगा। एक बार पढ़ेगा तो भी समझ में आ जाएगा, 50 बार पढ़ेगा तभी भी भक्त भगवान के बारे में समझ में नहीं आएगा। एक बार सुनेगा तो समझ में आ जाएगा, 50 बार सुनेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्योंकि गुरुदेव का ब्लेसिंग चाहिए, गुरुदेव को खुश करना चाहिए। अभी कुछ भक्त किए थे, हमने कहा महाराज को कैसे पर्सनल सर्विस कर रहे हैं, वो शास्त्र ज्ञान में देखा उनका पास में, वो बहुत पढ़ाई नहीं किए, लेकिन वो श्रवण करते हैं, किसी का प्रति भय थे, कोई गाइड का ऊपर में, कोई गुरु का ऊपर में पूरा भय थे, उनको गुरु को गुरु जैसे सेवा करते हैं, मानते भी हैं। हम लोग तो गुरु को जैसे दूर से देखते हैं, बस ठीक है, उनका साथ में हमारा रिलेशनशिप नहीं है, हम लोग उसको सेवा नहीं करते हैं। सेवा दो टाइप का है, बप्पू सेवा, वाणी सेवा। तो जिसको बप्पू सेवा का ओरिजिनल से करना है, जिसको वाणी सेवा का भी है, उसको फॉलो करना है, तो गुरुदेव को ऐसे ही सेवा करेगा तो गुरुदेव आशीर्वाद दे देगा। तथा तू कृष्ण मोती रस्तु, आ देख बोल दिया तो कृष्ण मोती रहेगा, यशस्वी भवो। और कितना कितना ये आपका दिव्य ज्ञान आ जाए आ जाएगा, सब आ जाएगा। ब्लैक म्यूजिक में एक है, मैं इसको बार बार बोलता हूँ इसलिए, जो ब्लैक म्यूजिक सिखाता है उसका शिष्य वो सारे से कुछ सिखा नहीं पाता है या सीख भी नहीं पाता है, लेकिन वो जो गुरु है, जो ब्लैक मैजिक वाला हम गांव में देखे हैं, तो वो लोग मरने का टाइम में अगर शिष्य को छू देगा और बोलेगा कि मेरा जितना ज्ञान है तुम्हारे पास में चला जाए, तो ऑटोमेटिकल चला जाता है। वो थोड़ा कुछ सीखा होगा, लेकिन फिर उसका पास में ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब छू देता, मतलब आशीर्वाद दे दिया, और वो चाह डिजायर किया कि मेरा जितना शिक्षा है तुम्हारे पास में जाए। होता नहीं क्या? होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं, हम लोग डिफिकल्टी में पड़े हैं, तो कोई हमको हम प्रेयर करते किसी को, तो वो बोलता है कि हमारा, अगर आपका पता होगा ना वो सत्यवान एंड सावित्री सत्यवान, सावित्री सत्यवान किया हुआ, सावित्री इतना भक्ति कर रहे थे, सत्यवान का आया कि कल उनका सूर्य उदय होने से उनका मृत्यु होगा, सूर्योदय का होते होते या जो नेक्स्ट उनका मृत्यु आ जाएगा। तो सावित्री बोले काल का सूर्य नहीं आएगा, अगर हम ये सती धर्म पालन ठीक से किया है ना, तो सूर्यदेव को बोले कि आप काल, ये आप सूर्य काल नहीं आएंगे, जबकि सूर्यदेव कृष्ण का वार्ड में चलते हैं, कृष्ण का वार्ड में चलते हैं, ये सती धर्म पालन किए। ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़ा भक्त हो गए होने से अलग बात है भैया, ये तो हमारा भीष्म पितामह, वो तो शुद्ध भक्त है, महाजन है, भगवान का पार्षद है, लेकिन उनको कहां से ये बल मिला, उनका आशीर्वाद मिला गुरु, उनका पिताजी से, तुम्हारा इच्छा मृत्यु होगा, तुम अगर तुम हमारे लिए क्या किया, देखिए सिर्फ इतना किया था भीष्मदेव ने, देवव्रत उसका बाद भीष्म, हाँ, तो उनका पिताजी का जो डिजायर को पता चल गया कि पिताजी चाहते हैं इनको मैरिज करना है, तो ठीक है, तो इसके बाद में ये अरेंजमेंट किया, वो जाके सत्यवती से ना, तो बोले कि आप मेरा पिताजी चाहते हैं आपको मैरिज करने के लिए, तो बोले उनका पिताजी जो ये था सबर या क्या था, जो
डाउट था ये। तो बोला कि कोई बात नहीं है, लेकिन हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी पिताजी का दूसरा ये है, वो उसका बच्चा जो होंगे वो राजा हो जाएंगे, इसका बच्चा राजा नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, हम राजा करा देंगे। अच्छा ठीक है, अगर राजा होगा भी इसका, लेकिन फिर तुम्हारा मैरिज होगा, तुम्हारा बच्चा होगा तो वो भी राजा बन सकता है, इसका परंपरा में नहीं आएगा। फिर तो बोला ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। तो विश्वदेव उनका पिताजी के लिए तो बोले ठीक है, तब तो ठीक है। तो इसीलिए पिताजी को जाके बोला कि हम अरेंजमेंट कर दिया, आपका डिजायर जो था। पिताजी उनको बोले नहीं थे, वो देखे पिताजी बहुत विसर्ण रहते हैं, क्या हुआ क्या हो रहा पता किया इंटरनली कि पिताजी ऐसे गए थे। तो इसे तो पिताजी को डबल शादी कराने के लिए भीष्मदेव ने, कोई दूसरा बेटा को करेगा क्या, हमारा पिताजी दूसरा शादी करेगा। हमारे प्रभु ने बोलते लक्ष्य हीरा का बात बोलते हैं, मैंने हम पढ़ा नहीं लेकिन उसका जो सुना है उसको पढ़ना है। लक्ष्य हीरा उसका हस्बैंड के लिए क्या क्या, उसको हस्बैंड दूसरा वाइफ के लिए, दूसरा के लिए एक अट्रैक्शन हुआ। तो ये जाके उनको रिक्वेस्ट किया, जो इसका पहला वाइफ जाके इसको रिक्वेस्ट किया कि मेरा हस्बैंड से आपको शादी करना है, आपको उसके लिए जो भी करना है मैं राजी हूँ। मतलब आजकल का पत्नी बोलेगा क्या, जो दूसरा हस्बैंड चाहता है दूसरा शादी करना है, वो जाके उसको रिक्वेस्ट कर हमारा पिताजी, हमारा हस्बैंड का डिजायर है, इसको आप थोड़ा फुलफिल करो, ये आप इसके बदले में हमको चाहकर जो करना है कर सकते हैं। इसलिए भीष्मदेव ने देवव्रत में जाके उनको बोल रहे हैं कि आप शादी कर लो, आज आपका बेटी को शादी करा दो हमारे पिताजी से। तो पिताजी का डिजायर को वो हो सकता है कि वो भी मेटेरियल डिजायर है, ऐसे का मतलब है, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल डिजायर। बट एनीवे, सत्यवती का फिर बहुत हाईली एलिवेटेड सोल है, तो उनसे फिर व्यासदेव आते हैं। तो कोई बात नहीं, तो ये जो कैसे चीज में देखना है, तो कैसे ये गुरुदेव को छोड़िए कि पिता को खुश कर दिए, पिताजी को खुश कर दिए तो इच्छा मृत्यु मिल गया। क्योंकि हम इतना डीपली इसको सोचा नहीं था कभी। एक बार हम कोई डिस्कशन हो रहा था, गुणानंद प्रभु ने बताया, तो रेगुलर शास्त्र है, रिवील नहीं करता। देखिए शास्त्र हम पढ़े सुने, लेकिन इसका रियल मीनिंग हम लोग को आता नहीं है, तो साधु से सुनने से आता है। तो ये प्रभु ने एक बार बोला, देखिए देवव्रत ने इतना पिताजी का वार्ड को फुलफिल कर दिया, उसको इच्छा मृत्यु मिल गया। आप समझ सकते हैं कितना है। तो इसीलिए पिता माता का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद से एक भक्त आगे बढ़ता है। और इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वो जो बोला सिंपली उसी को फॉलो करना है। अच्छा ठीक है, सवेरे क्लास पर अटेंड कर लो, हाँ तो बोला तो ठीक है, लाइफ को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा भी शायद 2 राउंड चैंटिंग बाकी है, आज भी मेरा लेट हो गया, पर समटाइम्स तो क्या करना है ना, प्रभु ने बताया इसको हम दिल लगा के सेवा करेगा, मेरा हिसाब से मैं ट्राई करूंगा, मेरा उसमें बहुत फॉल्ट भी है, आप लोग उसको माफ कर दीजिएगा। तो अगर उसी में करते हुए फॉल्ट भी होता है, करते हुए गलती भी होता है, कोई भी काम करेगा तो उसको गलती होगा, इसलिए हम गलत काम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। सेवा पर सिंसियरली ट्राई करेगा, और उसमें करते करते गलती भी होता है, फिर सुधार होता है। लेकिन हम जो किस सेंस में, इन सिंसियरिटी में हम सेवा करेंगे, कर रहे होंगे, तो जो सेवा दिया हुआ है उसको पता चल जाता है, उसको रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है, और उसका अलावा भी उसको भी पता चलता है कि ये आदमी कितना सिंसियरली सेवा करना ट्राई कर रहा है एटलीस्ट। तो उसी टाइप का उन देन वो सेवा ठीक से नहीं हुआ, प्रभु जी हम ठीक से नहीं कर पाया, हम भी बोलते हैं प्रभु जी हमारा सारा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोगों का पास में अच्छा है, दे आर आल्सो चैंटिंग वेरी नाइसली, हमारा तो हो नहीं पा रहा है। बट एनीवे हम इतना ही जानते हैं भैया, हम ट्राई तो कर रहे हैं। अगर प्रभु ने, गुरुदेव ने अगर खुश हो गया तब तो हमारा रास्ता क्लियर है, विदाउट फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। लेकिन हम लोग जानबूझ के रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक नहीं करना, ऐसा नहीं कि हम बोल दिया तो लेकिन ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन सिंसियरली तो ट्राई कर रहा है ना। अगर सिंसियरली ट्राई कर रहा है, वो ट्राई सिंसियर ट्राई करना है। मतलब ट्राई फेल जो वर्ड है, लोग उसको सोचते हैं ट्राई ऐसे ही ट्राई है, इसलिए मैं उसको डिस्कस भी किया था। सिंसियरली ट्राई क्या है, हमारा जो टीचर गए थे आईआईटी में, बोला ना पहला दिन में जाके या 2 दिन, 2 कुछ दिन में देखा कि लोग किस टाइप का लैंग्वेज बात कर रहे हैं। मैं बोला था उसको, आप लोग सुने होंगे, वो बोला कि गुरुदेव हमें आया था इधर 5 आदमी को सिंसियर भक्त बना के लिए, 5 ओनली 5, लेकिन इसमें एक भी नहीं हो सकता, मैं चलता हूँ। गुरु महाराज ने उसको बोला कि ठीक है, तुम गए हैं तो एक सेमेस्टर वेट करो, 6 महीना। और वो 6 महीना को एक फिर बोला ठीक है, सिंसियरली ट्राई किया। विद इन अ मंथ 25 डिवोटी केम टू देयर क्वार्टर। Within 6 months 75 devotees started to come.
हम लोग बोलेंगे ट्राई किया फेल हो गया। अरे भाई ट्राई करने के लिए भी तरीका होता है, दिल लगा के ट्राई करना है। ऐसे वर्ड को हम लोग समझे नहीं है, ट्राई फेल, वो जो वर्ड वही बोले थे। ट्राई मतलब सिंसियरली ट्राई करना पड़ेगा। उसका बाद में हम देखेंगे, सर मैं उठने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अलार्म बज, लेकिन हम उठ नहीं पा रहे हैं, हम भी प्रॉब्लम है। तो ट्राई फेल होगा तो क्या होगा? उस टाइम ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। रियल मीनिंग ट्राई का है सिंसियरली आपको ट्राई करना पड़ेगा, हमको ट्राई करना पड़ेगा। तभी दिव्य ज्ञान, तो फेल होने से भी दैट इज ऑल्सो गुड, फेल होने से भी अच्छा है। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। अगर सिंसियर ट्राई का फेल हुआ तब तो अच्छा है, क्योंकि उसमें भी एक मीनिंग है। एवरी क्लाउड इज हैविंग सिल्वर लाइनिंग ऑन इट, बोलते ना, एवरी क्लाउड, एक क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग रहता है, मतलब झकास आएगा। तो उसमें फेलियर में क्या अच्छा है? फेलियर में यही होता है, अब सिंसियर ट्राई किया फेल हुआ, तो फेलियर की पिलर ऑफ सक्सेस, इसलिए बिकॉज ये हमको हम्बल बनाता है। जैसे मेरे से सब कुछ नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ, मतलब मेरे को जितना बोले उतना भी नहीं मैं कर पा रहा हूँ, तो हमारा अंदर में एक दुख आएगा, और उसी दुख हमको फिर आगे ड्राइव करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं सबसे बोलता हूँ, टीचर बोला, डोंट बिकम ओनली हैप्पी विथ व्हाट एवर वी आर डूइंग, वी शुड ऑल्सो बी वेरी सोरफुल दैट सो मेनी थिंग्स इज टू बी डन। हमारा लाइफ खत्म होने वाला है, पास में समय कम है, और हमको कितना जर्नी जाना है अभी हम नहीं पहुंच पाया है, तो इसलिए वरीड होना चाहिए। हाँ थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा कर रहे हैं, उसके लिए खुशी होना चाहिए, गुरुदेव का कृपा से हो रहा है। लेकिन जो बहुत बाकी है, हाँ, अंधेरा बहुत रास्ता बाकी है, चाली भी नपड़ी भी थकी, हाँ, तो इसीलिए वो चल रहा है फॉरेस्ट में तो बहुत बाकी है अभी। बट एनीवे सिंसियरली ट्राई करेगा तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए गुरुदेव आएगा, आके उस हेलीकॉप्टर में बैठाएगा और फॉरेस्ट से बाहर करके निकाल के पहुंचा देगा। तो बहुत रास्ता बाकी है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जितना रास्ता कवर करने के लिए ट्राई किया, सिंसियरली किया, फिर गुरुदेव ने आएंगे और रेस्ट ऑफ द पाथ को कंप्लीट कराएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद का गुरु महाराज सीओबी शिला प्रभुपाद भक्ति ठाकुर शिला प्रभुपाद ने बोला 64 राउंड स्टंटिंग करेगा, जो 64 राउंड स्टंटिंग नहीं करेगा उसका बोलते लाखपति, क्योंकि एक नाम में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 नाम है, 16 नेम, तो 108 और इंटू 64 करेगा तो ये 1 लाख नेम होता है, और इनका 3 गुण करेगा 192 राउंड्स करेगा तो 3 लाख होता है। तो डेली 3 लाख नेम लेते थे हरिदास ठाकुर ने, लेकिन भक्ति संस्कृत ठाकुर बोला डेली 1 लाख नेम लेना पड़ेगा। लाखपति नहीं होगा तो उसका हाथ में पानी भी नहीं पीना है, ऐसे लाखपति होना चाहिए। पैसा में लाख नहीं है, नाम में डेली 1 लाख नेम तो होगा, तब तो वो बोला पानी पीना है उसके हाथ, नहीं तो उसका पानी, उसका मुंह नहीं देखना। अभी बोल रहे थे महाराज ने कि कोई भक्त आता है, उसका शिष्य भक्ति संस्कृत ठाकुर महाराज को दर्शन करने के लिए, कुछ मिलने के लिए, उनका जो मीडिएटर है या जो भी भक्त है उसको मिलवाता है, पहले उसको पूछता, पूछिए 64 माला जप किया गया, माला कंप्लीट हुआ उसका आज 64 राउंड्स, तो अब हम मिलेंगे, नहीं तो काल आइए कंप्लीट करते। ऐसे महाराज ने बोल रहे थे, कितना सीरियस है। उस जगह में शिला प्रभुपाद हमारा जो आए ना, वो लोग जाके अप्रोच किया अमेरिका वगैरह में, वो तो बोले 64 राउंड तो हो नहीं सकता है कलयुग में भैया, सर जी नहीं हो सकता है, तो थोड़ा कम करो। तो ठीक है 32 तो कर लो, नहीं 32 भी हमसे नहीं होता, तो ठीक फिर 25 कर लो, ये एकादशी वाला, नहीं 25 नहीं कर सकता, तो फिर 16 करो, तो 16 करो बोल के उठ गए और बैठा नहीं गया, वो लोग बोलेगा फिर 0 करो बोल के बोलेगा 18 8 है 4 2 1 में पहुंच जाएगा, तो ऐसे नहीं, तो बोला नहीं 16 से करके उठ गया। तो वही महाराज उस दिन बोल रहे थे कि मेरे को भी पता नहीं था, बोल रहे थे 64 माइनस 16 48 राउंड्स, शिला प्रभुपाद बोला तुम 16 राउंड सिंसियरली करो, 21 में 25 है, तो देन रेस्ट 48 राउंड्स मैं आपके लिए कंप्लीट करूंगा। शिला प्रभुपाद ने कमिटमेंट किया है उनका गुरुदेव का पास में कि मेरा शिष्य लोग 16 वाला करेगा सिंसियरली, तो रेस्ट 48 राउंड्स हम उनके लिए कंप्लीट कर देंगे। तो दैट इज द कमिटमेंट गिवन बाय शिला प्रभुपाद ऑन बिहाफ ऑफ अस टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर, देन ओनली ही रिड्यूस्ड इट टू 48 to 16, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 16 माला करेगा तब खाना खाएगा, 16 माला करेगा तो पानी पिएगा, 16 माला नहीं करेगा तो खाएगा नहीं पिएगा नहीं, ये बहुत लोग करते हैं, हमारा टीचर का बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको करते थे, हम देखे हैं। तो देन ओनली होगा उसका, हम लोग साधना उतना ही कर सकते हैं, 16 माला वो भी ठीक से नहीं होता है,
थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, दिन में 2 घंटा 4 घंटा टाइम नहीं देते हैं तो 24 घंटा से फिर कैसे होगा? इसीलिए हमको सिंसियरिटी बनना पड़ेगा, उतना ही सिंसियरिटी अगर बने, श्रील प्रभुपाद जितना बोला वो भी जानता है ये नालायक लोग है, तो इसलिए अमेरिका में कुछ लोग पूछे प्रभुपाद बोले अरे तुम लोग क्वेश्चन करने पूछे तुम लोग क्या पूरा रेगुलेटरी प्रिंसिपल 4 प्रिंसिपल है, नो मेटिटी, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, उसको फॉलो करता है प्रॉपर्ली? नहीं गुरुदेव, उतना प्रॉपर्ली नहीं होता है। कितना परसेंट फॉलो करते हो? 75%? 50%? नहीं। 30, 40? नहीं। 25? नहीं गुरु महाराज, उतना भी नहीं होता है। अरे तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, प्रभुपाद ने को इनिशियली सैंक्शन कर दिया, ये ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए मैं एक बैक साइड डोर रखा है वैकुंठ जाने के लिए। हाँ, मेरा एक बैक साइड डोर है, उसी डोर में आप आना, फ्रंट डोर में तो नहीं जा सकता है, ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो पीछे वाला रास्ता है, वो सुड़ंग है, वो पीछे रास्ता में हम आपको ले जाएंगे, कोई लोग देख नहीं पाएगा है, इसका मतलब। तो आप मेरा जो धोती का ना कपड़ जो है कच्छा को पकड़ लेना, और हम आपको लेके वो पिछवाड़ा वाला बैक साइड डोर, बैकडर एंट्री में लेकर चला आएगा। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया, क्या बताया? Because a bona fide spiritual master is a repetitive Krishna, if he bestows any blessings upon his disciple, that will make the disciple immediately advance without the disciples following the regulatory principles. Or the regulatory principles will be easier for one who has served the spiritual master without reservation. तो हम ये बात बोलने से लोग अलग से सोचते हैं, हम एक बोला ये वाला, तो लोग उसको बोलते हैं कहाँ लिखा है कि 99% कृपा? प्रभुपाद ने बोला, हमारा टीचर बोला था कि कलयुग में 99% कृपा, 1% साधना। फिर हमको कुछ लोग सीनियर भक्त पकड़े, आप ऐसे क्लास में कैसे बोल सकते हो, कहाँ पे लिखा है दिखाओ। तो मैं बोला लिखा तो नहीं है, लेकिन हमको जो टीचर बताया था वही मैं सुना था, और हमको भी लगता है वही है, लेकिन एग्जैक्टली 99 होगा या 1 वो थोड़ा वेरी भी कर सकता है, लेकिन इनका मीनिंग है कि कृपा ही कलयुग में साधना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कृपा ज्यादा है। तो देन हम देखा कुछ एग्जाम्पल, हम देखा भाई जगाई माधाई जैसे है, वो क्या कर रहे थे, हाँ वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो ठीक है अपराध किसी को, वैष्णव को अपराध नहीं किए थे इसलिए, लेकिन और सारा अपराध किए थे, वैष्णव अपराध नहीं किए थे। उनको चैतन्य प्रभु का कृपा से नित्यानंद प्रभु ने कृपा कर दिया उनको, तो फिर चैतन्य प्रभु को कृपा कर दिए, तो इसलिए देखने से बहुत सारा कृपा है। वो बैठ के कहाँ चैंटिंग पहले करते थे क्या? कुछ तो नहीं किया। बट एनीवे, हाँ, लेकिन हम लोग वो एक्सेप्शनल केसेस है, हम लोग रियलिटी में नहीं जाना है, हम लोग को जनरल रास्ते में भी चलना पड़ेगा। तो एनीवे, बट इम्पोर्टेंस ऑफ कृष्ण कृपा है बोल के ये इसमें है, इसलिए ही झोलने से भी हमें बोला ना एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है, तो कितना परसेंटेज है भक्ति का इम्पोर्टेंस है। तो ही झोलने से नृसिंह स्वामी महाराज इस पर हमारी यात्रा में गुरु महाराज के साथ में आए थे, वो बोला शिलाप्रपाद बोले हैं कि आप गेस करिए कितना परसेंटेज है साधु संघ में, तो कोई बोला 25%, कोई बोला 30%, कोई बोला 60%, 80, बोला नहीं नहीं 98% गुरु मैंने हमारे प्रभुपाद ने बताया, तो वो सुने हैं, तो वो बताया, तो मैं फिर इसको कैसे प्रूव करूंगा? मैंने अगर मेरे को पूछेगा अभी साधु संघ कितना परसेंटेज है, एक आइडिया देने के लिए 98% प्रभुपाद ने बताया, आइडिया लगे कितना इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया, लेकिन इसको मैं शास्त्र में खुद ढूंढूंगा 98% कहाँ लिखा है। अरे भाई जो जुगाचार्य बोल दिया, उसका परंपरा में जो शिष्य बोल दिया, तो हम उसको बिलीव करेगा नहीं बिलीव करेगा? जुगाचार्य शिला प्रभुपाद का पावर था कि चेंज कर सकता है, और शिला प्रभुपाद का ये था कि 64 से 16 कर सकता है। वी कैन नॉट डू इट, नोबडी कैन डू इट। ये जुगाचार्य, जुगाचार्य कैन चेंज अकॉर्डिंग टू जुगा, लिटिल बिट थिंग्स डेविएट कर सकता है, डेविएट में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, तो लेकिन वो उसका मीनिंग वो नहीं था, तो इसलिए फिर उसको कंप्लीट करने के लिए 48 राउंड्स शिला प्रभुपाद उसको कमिटमेंट किया है। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। एनीबॉडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग और शॉर्टली? नितेश बाबू क्षमा करिए, आपका डिस्टर्ब हम कर दिए कल, तो धन्यवाद प्रणाम तो ऑल डिवोटीज। मतलब पूरा यही लगा कि सबसे जो पूरे क्लास का मतलब क्रक्स था कि फेथ सबसे बड़ा चीज है, जो उसको मतलब गुरु अगर बोल दिए, उसको नहीं भी पता था कि ये मतलब लैंग्वेज में क्या है, फिर भी वो करते गया तो मतलब उस पे वो मतलब पूरा उसका उद्धार हो गया, उसको मतलब मिल गया जो सब कुछ। हाँ, तो मतलब वो तो वही चीज है कि फेथ सबसे बड़ा चीज है। हरे कृष्णा प्रभु जी का तो प्रॉपर फेथ इन गुरु ना, उसका वर्ड का मीनिंग पता था, बट दैट वर्ड वाज ऑब्सिन लैंग्वेज, तो इसलिए उसको पता था मीनिंग, लेकिन उसको बोला गुरुदेव बोला है तो उसको तो
मन करना पड़ेगा, यही इसी में शायद सब कुछ है, इसीलिए वो करते गए। तो एनीवे, तो दैट इज गुड, बट हम लोग को थोड़ा ऑस्टेरिटी लेना पड़ेगा, कुछ तो परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ तो कष्ट करना पड़ेगा भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए। तो आज मैं वही सोच रहा था कि हम जो सोच रहे हैं कि कैसे मंदिर के लिए कैसे कलेक्शन करूंगा, मैं तो बोल दिया, ऐसे इंस्पिरेशन अंदर से आया, लेकिन कैसे करूंगा इट इज ए ग्रेट टास्क, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। उन्हीं का कृपा से, भक्तों का कृपा से, सबका कृपा से वो कैसे वो पहुंचेगा वो टारगेट को, आई डोंट नो। कुछ इस तरह का है। तो अगर गुरुदेव चाहेंगे, हम लोग ट्राई करना है, और गुरुदेव का कृपा होगा तो डेफिनेटली कृष्णा कृपा होगा, और उससे हम लोग कुछ सेवा कर सकता है। अदरवाइज एकाकी हमारा नहीं पाए, ऐसे ही हमारा भी कुछ है ही नहीं, बट उनका कृपा सारे का भरोसा करके साधना जब किंचित कर सकते हैं, मिला है अथॉरिटी से, उतना ट्राई करना है। हरे कृष्ण। श्रोता प्रभु। हरे कृष्णा सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो आज का क्लास तो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो हमको ये सीखना मिला जो भी करना पूछ के करना है, और जो शुद्ध परंपरा गुरु परंपरा में आ रहा है उनको लेकर प्रॉपर गाइडेंस में चलना चाहिए। हम लोग को डीप बिलीव रख के चलना चाहिए। तो हम लोग जैसे करेंगे वो इससे रेसिप्रोकेट होगा। तो हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं। तो भक्ति मार्ग तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग डीप बिलीव नहीं रखेंगे तो ये भी ठीक ठाक होगा नहीं। तो ये जितना भी हम लोग का जितना भी दुख यंत्रणा जो भी है, तो वो मुक्त होने के ओनली उपाय ओनली गुरु को पकड़ना, शुद्ध गुरु के साथ। और जो डिवोटी एसोसिएशन में भी दिखा, बुर्ला में जो हुआ सो वीडियो में दिखा, बहुत अच्छा लगा। आई वॉज अनएबल टू अटेंड। तो हर टाइम हम लोग को आप जैसे हर टाइम बोल रहे साधु का सेवा माने भगवान का सेवा, तो भगवान का सेवा भी और बढ़ेगा। जैसे माने इनिशिएशन भी ले जाएंगे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप तो बोले थे माने भक्ति में बिगिनिंग, ये जो इनिशिएशन, तो इसलिए हम लोग हर टाइम असत्संग परिहार करना चाहिए और डिवोटी एसोसिएशन में रहना चाहिए। तो हम लोग हर टाइम वी मस्ट एक्सप्रेस आवर थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड टू आवर गुरुदेव फॉर आवर इम्प्रूवमेंट। तो थैंक यू फॉर द क्लास। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। Thank you. So we welcome our Mataji on her initiation, Harinam initiation. Now she is Purnima Devi Desi. We welcome her by chanting Hare Krishna mantra after her initiation. Today she has joined here in the class. Congratulations to her, and also we wish फिर फ्यूचर में कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, इनिशिएशन के बाद में सबको ही प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। This is also one step towards Krishna consciousness, major step. We can hear from Purnima Devidasi. So if she wants to share something, how is she feeling after initiation and how what help is required from others, also try to extend that help so that everybody can progress in Krishna consciousness. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam, and Dandavat Pranam to all devotees. प्रभु आवाज आ रही है? हाँ, yes, please. ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते आत्मनिवेदन स्वामी नीति नामिते। हरे कृष्णा टू ऑल। प्रभु जो इनिशिएशन उत्सव, वो उत्सव
जो अटेंड किया था, जो गुरुदेव को देखे कि गुरुदेव का सामने जाने से और बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे लगता है मैं तो गुरुदेव को कभी दर्शन किया नहीं था, लेकिन इस बार पहले दर्शन हुआ। एंड गुरुदेव का जो आदेश है, जो बोले वो 16 राउंड चैंटिंग एंड 4 प्रिंसिपल को फॉलो करना और 10 अपराध नहीं करना। ये जो 3 चीज गुरुदेव हमको बोले हैं। और गुरुदेव बोले कि सीरियसली, अगर ये प्रोसेस बहुत आसान है लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्टीज उसी टाइम में होगा जब आप खुद सीरियस नहीं रहोगे। अगर खुद सीरियस रहोगे तो ये सिंपल आसानी हो जाएगा भक्ति का। उसके बाद हम लोग का प्रभु जी जो इनिशिएशन हुआ, वो जो इनिशिएशन बाद पहले बहुत भय था। और जो इनिशिएशन का पहले दिन हम लोग जो मंत्र, गुरुदेव का प्रणाम मंत्र एंड ये जो अपराध, ये सब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। सब कोई भूल जा रहे थे, मतलब याद ही नहीं आ रहा था। सब कोई वही डिस्कशन कर रहे थे, नहीं अभी कुछ नहीं याद आएगा, और गुरुजी के सामने तो और भी भूल जाएंगे। तो फिर वही सब कोई डिवोटी मिलके हम लोग प्रैक्टिस किए। ईच अदर को बोले कि प्रणाम मंत्र। और उसके बाद जो इनिशिएशन उत्सव में जो प्रभु ये जो भाव था एंड जो एनर्जी मिला है कि हमेशा अभी उठने से भी गुरुदेव का ही फेस दिखाई देता है। हमेशा मन में गुरुदेव वो जो फीलिंग्स है, वो एक्चुअली गुरुदेव को अब जब शरण करेंगे तभी और भी जो मर्सी फ्लो होता है। तो वो जो फीलिंग्स है, जो आप इतना दिन से आप कह रहे हैं कि वो गीता में जो भागवत में सारे शास्त्रों में जो लिखा है, गुरुदेव का जो रिलेशन है, गुरुदेव एंड भगवान, गुरुदेव जो माध्यम के थ्रू में हम लोग को पहुंचा देते हैं भगवान का श्री चरण में, वो एक्चुअली में वो हार्ट में बैठ गया है। और जो गुरुदेव जो बोले, बहुत सारा वैल्यू, मैंने जो बोले कि जैसे कि आप जो बीज, भक्ति का बीज जो हार्ट में हम रोपण करते हैं, तो वो जो क्रीपर होके वो बढ़ता जाएगा और वो जाके कृष्ण का जो लोटस फीट, जो पादपद्म है, जो लोटस है, उसके साथ वो क्रीपर, भक्ति का जो क्रीपर है, वो बढ़ते उस तक टच करेगा। वो चीज मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा। तो प्रभु, और उसके बाद हमारे प्रभु को दर्शन करके आए, तो हमारे प्रभु जी से बात हुआ, तो आप ही का ग्लोरिफिकेशन किए कि देखिए जान प्रभु का गाइडेंस और गुरु कृपा, भगवान का कृपा नहीं होने से मैडम इतना तक आना भी मुश्किल है। तो ये सारे कृपा का ही रिजल्ट है। तो भक्ति कीजिए। बोले कि पंकजना प्रभु का इतना मेहनत और गाइडेंस, उसका रिजल्ट ही आज हमको मिला है। सो इसलिए प्रभु आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आपने मिला दिया गुरुजी से। एंड जितना संभव हो सकेगा मैं भक्ति में और श्रद्धा ज्यादा करूंगी। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू, हरि बोल। तो ये है ग्रेटनेस ऑफ द डिवोटीज who wants to give the credit to others. तो ये हमारे प्रभु का ग्रेटनेस है, इसीलिए वो बोला। तो वो भक्त ऐसे ही होते हैं, वो अपना जो है ना, अपना इम्पोर्टेंस को बताते नहीं है, वो दूसरा को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बोले कि आप लोग तो 3 थे, संपत प्रभु, आप और सब्यसाची प्रभु।
तो आप दोनों तो भक्ति फैमिली में जुड़े हुए हैं अभी, और अभी सुबह शशि जी बचे हुए हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे बोले तो। हाँ वही है, तो प्रभु इनडायरेक्टली हमको भी बोले हैं तो उसका प्रीवियस नाइट में। तो ठीक है, ट्राई करेंगे। इन लोगों को समझना चाहिए जो अभी आप उस स्टेप को पहुंचे नहीं, और लास्ट टाइम भी आप ऐसे थोड़ा पीछे हो रहे थे। तो इसमें क्या जंक स्टार्ट बोलते हैं। जंक स्टार्ट मीन से तो भी भक्ति में बहुत दिन का ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, बाद में अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो हमारी एनर्जी और आगे बढ़ता नहीं है। जब कृष्ण गुरु के माध्यम से कृष्ण को जोड़ते हैं तो वो हमको कुछ एनर्जी मिलता है। मैं भी रियलाइज किया था, बिकॉज आई टुक इनिशिएशन आफ्टर 17 years। तो उसके का तो अलग रीजन था, हमारे को को बहुत पहले भी बोलते ले लीजिए, बिकॉज मैं सर का परमिशन से लेना था, इसलिए मैं गुरु महाराज से ये मिलना था, उन्हीं से लेना था कुछ है, इसीलिए मैं दूसरा से लेना नहीं चाह रहा था। बट एवरीबॉडी इज इक्वल, बट एक परंपरा में हम आए थे। तो जब हमको इसको उस टाइम मेरा भी इनिशिएशन का 2 साल पहले आई वाज आल्सो वेरी वेरी लो इन माय भक्ति। तो देन व्हेन आई टुक द इनिशिएशन, मैं शास्त्र को जो आज रियलाइज भी करता हूँ, तो इनिशिएशन लेने के बाद में मेरा को भी थोड़ा फिर आया, थोड़ा एनर्जी आया। तो भगवान का एनर्जी मिलता है जिससे ना जुड़ने से, तो एनर्जी मिलेगा। तो इसलिए हम बार बार भी आप लोग को लास्ट टाइम भी बोल रहे थे, इस बार भी इसलिए बोल रहे थे। एंड आई एम सॉरी दैट हम कभी कभी बहुत र्यूडली भी बात किए इसके लिए। एंड मतलब बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स है कि हम चाहते थे कि अब जो प्रोसेस में है थोड़ा जोड़ के रहने से आप आगे बढ़ सकते हैं, तो नहीं तो ये डाउन हो जाएगा आदमी। इसलिए हम थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल भी देते हैं कभी कभी, जैसे सॉरी फॉर दैट। एंड जैसे मेरे को पता नहीं था वहाँ पे राधा कुंड में, मैं बोला कि आप फ्लाइट में टिकट करके जाइए बिकॉज यू डोंट हैव लीव। तो फिर बाद में पता चला, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि ये इनिशिएशन का बाद में नेक्स्ट टाइम इनिशिएशन में गुरु महाराज देंगे या नहीं देंगे वो भी डाउट है। तो इसलिए आपको मैं अभी बता देता हूँ। बाद में मेरे को भी पता चला वहाँ पे राधा कुंड में भी होना था, वो बंद हो गया। एंड इसलिए वो लास्ट मोमेंट में हुआ, मेरे को पता नहीं था। तो वहाँ पे इसलिए सबको गुरु हमारे प्रभु ने सबको लेके उनको अप्रोच किया था कि तो देन ये जो भूमि पूजन का बहाना है या रियलिटी भी है, उसका अंदर में उनको बुलाया गया एंड यहाँ पे हुआ। तो दिस इज समथिंग इंटरनल and I may not know, I don't know, but it might happen, might not happen, I don't know, but गुरुदेव चाहेंगे तो करेंगे, गुरुदेव नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। क्योंकि आजकल भी उस दिन ये भी गोविंद देव प्रभु बोल रहे थे, उनका 2 इनिशिएशन 2 डेज में हो गया था। बोला उसका बाद में गुरु महाराज ने उनका अभी तक दीक्षा नहीं दे रहे, तो उनका शिष्ट लीला चल रहा है। तो वो माने सेकंड इनिशिएशन नेक्स्ट ले लिए, नहीं तो अभी तक सेकंड उनका इनिशिएशन होना मुश्किल होता है, ऐसे रियलाइजेशन बोल रहे थे। तो इसलिए हम भी सुना है, हमारे प्रभु ने बोला है, सिंसियर भक्त भी है, 3 बार इनिशिएशन के लिए हुआ फाइनल, लेकिन नहीं हुआ। 3rd या 4th टाइम में हमारे प्रभु ने बहुत प्रेयर किया उनके लिए, उसका बाद में उनका इनिशिएशन हुआ। एंड एज फार एज आई माय नॉलेज गोज, ही इज नोबडी बट संजीव प्रभु। वो नाम नहीं बताए थे, बट तो उसका बाद में उनका गुरु महाराज ने फिर दीक्षा नहीं दिए हैं, एंड लास्ट बैच में दिए थे। एंड उनका बाद में वो अप्रकट लीला प्रकट किए, वन वृंदावन धाम को चले गए। तो ये है, तो इसीलिए आप इसको विदाउट एनी डाउट जो बोल रहे हैं ना, हमें तो लास्ट टाइम में बोले थे, अरे वो मछली पछली कोई दूसरा खा रहा है, उसके लिए इतना ये दीक्षा के लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज के लिए बोलकर कोई समझ नहीं पाएगा तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे मेरे को बोले थे कि क्या है इम्पोर्टेंट इसका, और वो किस कारण में मना कर रहे हैं, वो माइनर रीजन है, और इसको नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा इसका वैल्यू क्या है कंपेयर टू व्हाट obstruction is there, that is nothing, that is small things, the obstruction, but what we will get, इसको पाने के लिए कुछ ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करना पड़ता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन बहुत छोटा है उसके हिसाब से। हमको 1 करोड़ रुपया देगा, वो बोलेगा तुम हो सकता है कि रात भर जगह, या 1000 रुपया देगा रात भर जगने के लिए बोलेगा, तो हम या 5000 रुपया देगा तो हम जग जाएंगे ना, नेक्स्ट सो जाएंगे। तो उसी टाइप का तो ऑब्स्ट्रक्शन या जो डिफिकल्टी आएगा वो तो माइनर आएगा, वो डिफिकल्टी को ऐसे सामने में ये जो पा रहे हैं, जो मिला है वो चीज उसका hell and heaven difference है, that we have to understand, sometimes we have to sacrifice some things है। हो सकता है झगड़ा भी हो, मैंने कहना है मतलब if it is required also, हमारे टीचर इसे बोला था, if both of you give non-veg to your, allow your son to give non-veg and both of you go to hell and fight there, better it is fight to here then go to hell and fight there over non-veg। मेरा बेटा के लिए बोले थे, तो then हम फाइट भी किया था। Anyway, तो then समझा, then
संभाला सिस्टम को, तो फाइट भी रिक्वायर्ड होता है। भक्ति में फाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अर्जुन क्यों फाइट किया फिर? अर्जुन जप नहीं कर रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे हैं अर्जुन जप नहीं करते थे, अर्जुन फाइट करते थे। उनको फाइटिंग उनका सेवा था, फाइट करना। जॉब तो अंदर में रहता है, भगवान के लिए भक्ति है ऑलरेडी उनका। उस टाइम में ये बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे क्या? अरे डाउट था लेकिन वही है, अंदर में करते होंगे, बट ऐसे रेगुलर बैठ के जॉब करना है वैसे ही हमारे लिए जो है उनके लिए नहीं था। चिंता प्रभु हरे कृष्ण। आ जाइए पहले उसको दिल्ली प्रभु दीजिए बंधु प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हेलो धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज जो बोला है इसमें हमको पता चलता है कि विदाउट एनी डाउट एंड विदाउट एनी हेजिटेशन हमको वी शुड एक्सेप्ट दी वर्ड्स ऑफ द गुरु एंड साधुस and we should surrender ourselves on the lotus feet of the Guru. थैंक यू। सरेंडर मीन्स यही है, सरेंडर में यही होता है, ऑब्जेक्टिव में क्लास ज्वाइन करो, गीता पढ़ो, जो डाउट है पूछो, चैंटिंग सवेरे सवेरे कंप्लीट करो, नहीं होगा तो 10 बजे का अंदर मैक्सिमम करो, रिटायरमेंट के बाद में ज्यादा ज्यादा दूसरा एंगेजमेंट मत रखो। यही सरेंडर है, जो बोला प्रभु ने बोला है ना, उसको बोलते हैं सरेंडर। और सरेंडर कुछ को एक वर्ड नहीं है कि एक मैजिकल फिगर जैसे नहीं, मैजिकल वर्ड नहीं है। हम लोग सरेंडर का वर्ड को यूज करते हुए हम लोग धीरे से निकल जाते हैं रास्ते से। तो सरेंडर को यूज को मतलब सिंपली वर्ड में सरेंडर वही होता है जो हमारा गुरु जो बोला या गुरु का रिप्रेजेंटेटिव जो बोला, प्रभु ने कुछ बताया, गुरुदेव जो बताया था उसको एज इट इज पालन करना। वो भी बहुत बड़ा चीज कुछ बताया नहीं, हमारा मन को उसी ढंग से उधर डालना पड़ेगा, हमारा टाइम निकलना पड़ेगा, वो बेकार टाइम में नहीं जाके इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग उसको टाइम नहीं होता है, टाइम होगा उसमें टाइम देगा तो इसमें टाइम कैसे आएगा? उस टाइम को खत्म करना है ना, उस चीज को कर्म को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए उसको रखेंगे फिर बोलेंगे टाइम नहीं हुआ। भाई हमारे पास में 24 घंटे टाइम है, और हम उसको दूसरा चीज में नहीं यूज करेगा तो भक्ति में यूज करेगा ना, वही देखना है। हरे कृष्णा। चित्तर प्रभु जो बोले थे कृष्ण बलराम जो भगवान है ना, को दो टाइप का भगवान क्या पता नहीं चलता है। जने सेव्य भगवान जने सेवक भगवान। कृष्ण होती सेवा नियंती और बलराम होती सेवा दियंती, दुई जन भगवान। कृष्ण एक्सपेंशन फास्ट एक्सपेंशन अवतार होती बलराम, ताकर भी 100% क्वालिटी, याकर भी 100% क्वालिटी। खाली दीटा डिफरेंस, जने कला जने गोरा, और जने होती सेव्य भगवान, जब गुरु होती सेवक भगवान। गुरु भी भगवान सेवा करते हैं, सेवा सिखाते हैं हम लोग को कैसे सेवा करना है। और कृष्ण भगवान है वो सेवा लेते हैं, तो इसलिए सेव्य में चाहे तो सेवा करा जाए, सेवक की सेवा करे, बाकी दीजन भगवान। ओके, ये भी बहुत दिन के बाद में हमको क्लैरिटी आया। फिर मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, भगवान गुरुदेव भगवान समान है, कब बोलते कम कम, थोड़ा सा कम है, थोड़ा भगवान ज्यादा है, इस टाइप का बहुत कंफ्यूजन। मतलब मेरे को भी डाउट था स्लाइटली, क्या है समान बोलते हैं, कहीं पे बोलते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, कहीं पे क्या है। एक जगह में फिर हम सुना जब तो मेरे को क्लियर हो गया कि बलराम सेवक भगवान है, वही गुरु है, तो गुरु तो वही है। और सही पे कृष्ण और गुरु भीतर डिफरेंस किसी नहीं, सेम अच्छी, किंतु जड़े हूँ सेव्य, जड़े सेवक, सेवा कर जड़े सेवा नौ, और भगवान ही भगवान का सेवा करते, दूसरा कहीं करि परिबे नहीं से बड़े सेवा। तेणु आमे से सेवा रे हेल्प करछथि, माने असिस्ट आम कृपा करी सेवा देइछथि गुरुदेव। आमे गुरुदेव आरती करबी, आमे टिके ताकर प्लेटटा रेडी करी आनलु फॉर एग्जांपल जानिया पाए, है ना। तो गुरुदेव जो आरती गुरुदेव करथि, आमे जानि जे जो आरती के करछि, आरती तो आमे ऑफरिंग करछथि गुरुदेव को, से चामर दिया जाउछि प्रथम ताका हाथ लगे दी कि तापर चामर कोना गुरुदेव करछथि, आपण मार करना कि हां आरती की जो कला को चामर नहीं गुरुदेव पाक कहीं चाहते स्टार्टिंग रे जानते किछ ना ना, सब जिनिस तांको स्मरण करी से करूछंती, आमे करू नांती। हमर सेवा भगवान नेबे नहीं, आमे आरती कले भगवान ग्रहण करिवे नहीं, आमे से लेवल नांती। आरती आमे करू नांती, आमे गुरुदेव आरती करूछंती, आमे ताकू असिस्ट करूछंती, सेवक से सेवा कृपा कर देइछंती हमको। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसलिए हियरिंग कभी बंद मत करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। चैंटिंग हियरिंग पहले करिए, फिर जब करिए नहीं करिए अलग है। मैं बोला था, इसलिए हमारा टीचर बोलता है 9 बजे तक मर जाना है दुनिया के लिए, दिन में एटलीस्ट 9 बजे तक आपको मर जाना है, दुनिया से दूर रहना है।
जरूरत पड़ेगा मोबाइल साइलेंट ऑफ करके रखिए, और कोई भी काम करना है 9 बजे के बाद में, नहीं तो अगर कुछ इमरजेंसी काम है पहले खत्म करिए, फिर चैंटिंग एंड हियरिंग में बैठिए। चैंटिंग एंड हियरिंग का टाइम में बिल्कुल मोबाइल को नहीं देखना है। अगर कुछ इमरजेंसी है पहले चैंटिंग का पहले खत्म करिए, या हियरिंग का पहले खत्म करिए उसको, अगर इतना इमरजेंसी, और अदरवाइज हियरिंग का बाद में 9 बजे का बाद में मोबाइल को छुइए। इज इट क्लियर? ओके। हाँ, नहीं वो ओके ओके नहीं है, ओके सब होता है क्योंकि ओके होका है, उसको करना पड़ेगा। सॉरी टू से, अभी पद्मावती माता जी भी सुन रहे हैं, भाई हम लोग स्ट्रांगली बहुत बार बात किया, लेकिन वो जो जब मिल जाएगा वो चीज को ना, तब उस टाइम में पता चलेगा कि पहले मिलना चाहिए था, हम इसको क्यों नहीं। हमारे गोविंद देव प्रभु जो चैंटिंग कर रहे हैं, आप देखिए बैठ के उनका पास में, ही वाज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग, बट हमारा तो आ ही नहीं रहा है, तो वो एक्चुअली रियलाइज कर लिया कि इसको कितना लेट हो गया मेरा, वो बार बार बोल रहे हैं कि मैं भक्त में इतना लेट में आ गया। आप वही बात बार बार नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए मैं उनका पास में काल बैठा था चैंटिंग परसों, ही वाज क्राइंग चैंटिंग, क्यों? हमारा तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो थियोरेटिकल, हम थियोरेटिकली बोल रहे हैं, बट ही रियलाइज इट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थिंग व्हाइच आई शुड हैव डन। छोटी जन्म चला गया और इस जन्म में भी हम उसको जानने के बाद में नहीं कर पा रहे, इसलिए वो क्राई कर रहे थे। चैंटिंग इज नथिंग बट क्राइंग टू कृष्णा, ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, राधा रानी को प्लीज एंगेज मी इन कृष्णा सर्विस, क्राई कर रहे थे। अब देखिए हम उनका पास में बैठे थे, हम आजकल वो बैठते थे जो जब मैं बैठता हूँ पास में देखता हूँ उनका चैंटिंग, इसलिए उनको पता चल गया चैंटिंग क्या होता है। वो सीरियसली चैंटिंग कर रहे हैं एकदम, जस्ट क्राइंग, रियली क्राइंग। मैं लास्ट टाइम भी मार्क किया था, इतना फोकसली चैंटिंग कर रहे हैं, नथिंग। तो बट हम तो उसको जानते हैं थियोरिटिकली, बट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग करना है, ट्राई करना है, गुरुदेव का कृपा से ट्राई करना है। मतलब क्या, गुरुदेव का कृपा ऑलरेडी है, उसको ट्राई फिर क्या करना है, ट्राई करो। कौन मना कर रहा है? इसको क्या बड़ा कुछ तो पहाड़ उखाड़ने के लिए बोला है क्या? हम लोग उसको सामान्य भाव से ले रहे हैं ना, इसीलिए बात को कितना बार प्रभु ने बताया, हमारे प्रभु ने, हम उसको बात को इस कान में सुन के उसका मतलब उसका पैर में जैसे ना तो कथा को गोड़े दली देला भलिया, माने बड़ा अपराध है सब। दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। दीक्षा नवा इंपोर्टेंट, दीक्षा नहीं कि साधना को सिंसियरली जितने करिया पड़ियो, मिनिमम राउंड्स एंड ऑल दिस सिंसियरली करिया भाई हमको करिया पड़ियो। एटा को छुआ खेल कर पिला खेल कथा नुहे, और इमती भी बहुत किसी कहै जे कर परिबानी हम जे सारा पड़ी टाइम अन्य जिनिस करिया ପାଇଁ, बट प्रथम सकाळू मरि जा पड़ियो अन्य किछि काम नै। हां, मोबाइल कपाड़ी रखन सब दूर रे, पाखरे भी मोबाइल रखिए नै। इमरजेंसी हेले वाइफ को फोन आसीबो न ना, ए मरि गला, हमर मोबाइल साइलेंट होले वाइफ को पास आसीबो, से उठेबो फोन, तापर कहबो ए मरि गले बोली जे बात तापरे mobile and all things is creating trouble in our life actually। और हम लोग का ये इमरजेंसी इसलिए रखा, मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि ऑफिशियली इसमें व्हाट्सएप है, इसको देखना पड़ता है, कोई फेलियर हुआ। आप लोग का क्या है अभी इमरजेंसी क्या है मोबाइल में, अब सीखिए माने हमारा प्रभु संजीव प्रभु से गोटे छोट मोबाइल धरछंती, मोबाइल उठाए नहीं केबे, बहुत पहले फ्री हला पर मोबाइल देखले बाय चांस कि मिस कॉल करले ऑनलाइन, ताको चाकरी रे भी से जॉब का पाखरे जे कॉन्ट्रैक्टर काम जो करती ता के फोन करे भी से उठांदिनी, ମୁଁ ଆମେ ହେଲା ଫୋନ ଉଠେଇଲେ ବୋଧେ ଆମର ପଇସା ପଳେଇଯିବ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି କେମିତି? ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅଫିସିଆଲି ଗ୍ରୁପ ଅଛି ଅମୁକ ଅଛି, ତମେ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ, go back to the original positions। ମୋବାଇଲ ଖାଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ, ମେସେଜ ଏଣ୍ଡ ଯଦି ବଡ ମୋବାଇଲ ତାକୁ ଫୋପାଡନ୍ତୁ ଅନାଡ ରଖ, ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଖାଲି କର, नो व्हाट्सएप नथिंग इज रिक्वायर्ड unless actually joining and all these things। ଯଦି କିଛି କୋଟି इमरजेंसी रे मैसेज आसियो हेडा देखियो, अरे कृष्ण सॉरी टू से बट वो ज्वाइन करिए, बिल्कुल नहीं है अभी, अब ज्वाइन नहीं करेंगे डेली हम फोन करेंगे फिर देन आफ्टर दैट। देखिए भाई हम तो राजी है, प्रभु जैसे बोला ना हम तो राजी है, हम तो जाएगा नौकर जाएगा तो ये रसातल में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक दो आदमी को ऊपर भेज के जाएगा, ये मैं डिसीजन लिया, इसीलिए हम इतना स्ट्रांगली बात कर रहे हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बाद में आप उसका बाद में आप रहोगे, बाद में देन ओनली, आज पद्मावती माता जी क्या अभी रियलाइज धीरे धीरे आएगा, उसका बाद में आप रहोगे, अभी पता नहीं चलेगा। अब जो बात कह रहे हैं इसका इंपोर्टेंस कितना है वो तो अभी नहीं रहे पता चलेगा,
क्योंकि बच्चा है, अभी बच्चा है वो। बच्चे ये सुनते सुनते बार बार सुनेंगे तभी रियलाइजेशन आएगा गुरुदेव का के। वो तो हमें प्रभु ने कितना कृपा करते हैं, इसीलिए वो बोल दिया पंकज दास ने ऑल दिस थिंग्स से। एक्चुअली वो कितना हम लोग को प्यार करते हैं ना, वो आप लोग नहीं जानते हैं। ये ग्रुप में जितना बैठे हैं वेरी फॉर्चुनेट, बिकॉज हमारे प्रभु जैसे भक्त है, जो गुरुनिष्ठ भक्त है, हम लोग को प्यार करते हैं, हम उसका प्यार का नाजायज फायदा लेते हैं। उसके प्यार में हमको हमारा जिंदगी को जलांजलि देना पड़ेगा। कुछ तो कितना टाइम बचा है, ऑलरेडी लाइफ गॉन। हाउ मच टाइम वी हैव लेफ्ट इन आवर लाइफ? सारे कर दिया, कोई बच्चा के लिए, फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, घर घर भर सब बना दिया। उसका बाद में हमारे पास समय क्या है जो कि हमने एक भक्त के लिए जितना हम लोग को प्यार दिया, बांट दिया, खाना खिलाया, बैठाया, सुलाया, सुनाया एंड ऑल दी थिंग्स, हमारा उसके लिए कुछ प्रतिदान में कुछ बदल में कुछ देने के लिए कुछ भी हमारे पास में है, लेकिन नहीं दे रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? वो हमारा उन्नति चाह रहे हैं, हमारा भक्ति कैसे बढ़ेगा वही चाह रहे हैं। उसके लिए डायबिटीज का मेडिसिन खा के बीस को यहाँ पे रखे हुए हैं नीलकंठ जैसे। यार कुछ समझ में नहीं आएगा। हम तो बीस को उगल देते हैं रखते नहीं है, वो बीस को यहाँ रखे। भगवान शिव जी का रिप्रेजेंटेटिव है ना, बड़ा वैष्णव, समझ नहीं आएगा उसको। रियली वेरी टफ टू अंडरस्टैंड अनलेस एंटिल बच्चा नहीं बना, जो बाप नहीं बना। बांझो की जाने प्रसव वेदना, बांझो जानी नहीं प्रसव। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିଟା ଲୋକକୁ ଭକ୍ତି ଆଣିବେ ଆଉ ଆପଣ କଥା ସେ ଶୁଣିବନି, ଆପଣ ହିସାବ ଯିବ। ଯେମିତି ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଛି, ଆମେ ରିଏଲ ଫାଦର ହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା। ଆମ ପିଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋର ରିଲେଟିଭ ନାହିଁ, ମୋର सोसाइटी ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି। ଆगे ଆମେ ଭକ୍ତି ସିନସିୟରଲି କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। हमको गाड़ी दुख आसुचे, मोर फैमिली मेंबर्स माने भक्ति रे आसी नांती। गुरु गुरु न सस्या, सुजन सुजन न फ्रेंड फ्रेंड न सस्या, जननी जनन से पिता पिता न सस्या। इसलिए पिता हुए हैं हम, और व्हाट पर्पस है बिकम। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। हम सिंसियरली प्रेयर करेगा, भगवान का सेवा करेगा, मेरा होल फैमिली मेंबर्स को भगवान भक्त बनाएगा। इसका उनका जिम्मेदारी है, हम कहने से नहीं होगा। हो सकता है बच्चा बड़ा हो गया, ये प्रोसेस हम बता रहे हैं। आप इस टाइप का करेंगे तो आप उनका कृपा से सारे भक्त बनेंगे। अभी भी समय है सबका, सब चेंज हो जाएंगे। हमको दुख नहीं है, हमको उस चीज के लिए दुख नहीं है, दूसरा के लिए दुख नहीं है, अपने लिए दुख नहीं है, सेल्फ कंपैशन नहीं है। दूसरा के लिए क्या करेगा? आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ। पहले हमारे बारे में हम सोच रहे हैं। सॉरी टू से, हमारा देखिए, हम जब मूड आएगा हम इस तरह का बात करते हैं, लेकिन सर इसमें रियलिटी है इसको, क्योंकि किसी जो सोया हो उसको जगाने के लिए रियलिटी चाहिए। हम भी वन ऑफ द स्लीपिंग सोल। आई हैव टू आल्सो टू वक अप, जागो, जीव जागो, जीव जागो। अभी अच्छा, ये अस्त्र प्रभु शायद उस में रहेंगे तो पता नहीं है। गणेश प्रभु लगाया है सवेरे उठने के लिए, वो एक होलनेस गोरगोन स्वामी महाराज का उसका वार्डिंग है, जीव जागो, जीव जागो। मैं देखा रहे भाई मेरे रूम क्या जीव जागो कौन सा आ गया। मैंने सोचा कि प्रभु लेक्चर लगा के सुने, नहीं उनका मोबाइल में ये आ रहा है वाला। तो प्रभु तो थोड़ा डीप स्लीप में थे, मैं उठ के बाथरूम चला गया, जाके आया, फिर बाद में प्रभु उठे। बट एनीवे, तो जीव जागो मतलब यार, प्रभुपाद जो गुरु महाराज गुरु स्वामी महाराज का लेक्चर है, उसका पार्ट में वो अलार्म लगा हुआ है, उसी टाइम में वो अलार्म बजता है। वो आचार्य को, ये आचार्य प्रभु को अभी कौन सा रूम में है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं अभी वही 207 में हूँ। ये हो ना, बताइए, आपका कोई बात होगा तो सुनते नहीं आप लोग जिंदगी में। दैट इज कॉल्ड ऑब्स्टिनेशन, ऑब्स्टिनेट। एक बात जो बोला उसका रिलीज समझ में नहीं आएगा आप लोग को, इसलिए हम बहुत दुख प्रकाश करते हैं। हर बात को लोग कैजुअली लेता है। रीजन हमको नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए था उस टाइम में बताया था, आप क्यों नहीं बताया? अभी मैं सोच रहा आप इन दैट रूम, अभी आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं पूछने का मैं उस रूम में है, व्हाई?
सपोज मेरे को कोई बोला मेरा कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम में बताना चाहिए। 2 दिन का बाद में पूछेंगे तो उसका बाद में बोलेंगे मैं क्या एक्सप्लेनेशन। सर ने बोला डोंट यूज दिस इंटेलिजेंस इन गिविंग द एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई आई कैन नॉट फॉलो द इंस्ट्रक्शन बट रेदर ट्राई टू यूज द इंटेलिजेंस दैट आई कैन हाउ आई कैन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये सब छोटा छोटा चीज को हम नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं इसका वैल्यू नहीं है, तो फिर वो सब एक्सप्लेनेशन का कोई वैल्यू नहीं, मीनिंग नहीं है। भक्त संग में रहने के लिए बोला, अकेला आप रहेंगे तो कितना टाइम सो रहे हैं उठ रहे हैं पता नहीं है, इसलिए 2 भक्त साथ में रहना चाहिए। बोला नहीं रूम तो खाली हमको पता है, आपका रूम खाली पड़ा है, आप अकेला रह सकते हमको पता है, फिर भी मैं बोला था कारण तो कुछ होगा ना, किस लिए बोल दिया, नहीं कोई बिना कारण में बोल दिया तो हमको पता है नेचर सबका है, कितना डिग्री में बचा है इसलिए हम बोला है, सॉरी टू से बट एनीवे, इसीलिए भक्ति में नहीं पढ़ सकते हैं। एक सिंपल बात को फॉलो नहीं कर सकते जो क्या भक्ति में बढ़ेंगे वो, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है उसी टाइम में बताना चाहिए, 2 दिन का बाद में पूछने का बाद में थोड़ी बताना है। तो किस लिए हम बोला था इसको, हम भी तो बेवकूफ जैसे बात नहीं किया ना, कुछ कारण तो होगा ना। देखिए वो छोटी सी चीज को हम बोलते थे उसको लोग नहीं करना चाहते हैं, तो फिर बड़ा चीज क्या करेगा जिंदगी में। सॉरी टू से हरे कृष्ण चिता प्रभु, चिता प्रभु तो बोल दिए ना, हाँ चिता प्रभु। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज तो आज बहुत प्रभुपादଙ୍କର जोटा कि इम्पोर्टाट सब कहते सब श्लोक प्राय अधिकांश श्लोक थाए 80% कि यहाँ भी आउ थे जोटा कि आगुरी भी बहुत थर कही बहुत सरल भाव में गुरुंर कृपा जो बहुत सरल भाव में बुझे आईटा ही सिक्रेट, ये सिक्रेटा एवं गुरु कृपारू सेटा इजिली बुझे पार्छंती कि आमर गुरु गुरु तत्व जो श्लोक जो आम 37 श्लोक वासुदेव बामर रोचंती संकर्षण डाण रही बामरे जो वासुदेव रही बामर अनिरुद्ध रोचंती और संकर्षण जो डाण रही डाण प्रद्युम्न रही। फास्ट एक्सपेंशन नारद पंचरात्र जो भगवान का अर्चना पूजा विधि भक्तिर सूत्र विषय कही गोटे इम्पोर्टाट श्लोक कही जोटा वेरी इम्पोर्टाट, जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्मै ते कथिता अर्थाय प्रकाशन्ते महात्मन। जो व्यक्ति भगवान प्रति परम भक्ति अच्छी एवं सेपरी गुरु भक्ति गुरु प्रति मध्य अच्छी से ही महात्मा शास्त्र समस्त गुप्त अर्थ स्वयं प्रकाशित हुए, भक्त मान से भक्तर हृदय स्वयं प्रकाशित हम। एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जोटा आप गुरु माध्यम जानते सीटा आपण भी आपजे आम देखुचु आम आगे जड़े उदाहरण कि आपणकर जो वैषयिक ज्ञान अच्छी किंतु ये जो आध्यात्म ज्ञान यहीटा ही आपणकर गुरु माध्यम आसूची आपणकर हृदय भी स्वयं प्रकाशित होती। तेणु गोटे आउ गोटे एग्जाम्पल आसी पारे, भक्ति जदि बीज हुए गुरु होउचंती जल आ शास्त्र ज्ञान जदि अंगुर हुए ताले जो बीज जो गुरु बिना जल बिना बीजर अंगुर हो पारे गछ। तेणु ये गोटे बढ़िया एग्जाम्पल हो पार। आउ गोटे हूँ शिशु और माँ, शिशुटा गोटे चली पारुनी पाठ पढ़ी आसनी माँ शिक्षा गुरु ही से चलेबा के चलिया शिखाए आमती ज्ञान आरोहण करने शिखाए। तेणु भगवान को पाया सहज रास्ता गुरु माध्यम निष्कपट भक्ति आ गुरु को भी भक्ति कर अच्छी कारण इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। से जेतु प्रतिनिधि प्रथम जदि गुरु प्रति आमर जदि श्रद्धा न आसिला आमर गुरु प्रति जदि भक्ति न आसिला भगवान प्रति आसबनी। भक्तिर प्रथम हूँ जब भक्ति बढ़िया अच्छी गुरु प्रति जदि आमर भक्ति आसीगला ऑटोमेटिक
ସେଟା ସହଜ ହେଇଯିବ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବି ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କୁ ସେ ସେମିତି ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ବି। ସେ କହିଲେ କଣ କରିବେ ନା ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ସମୁଦ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣ। ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଯମରାଜ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେ ଯମରାଜକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜ୍ଞାନ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ନମ୍ରତାରୁ ମିଳିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ବପୁ ସେବା, ବାଣୀ ସେବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଟା ଛାଡିକି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ସେଟା କିଛି ନିଷ୍ଫଳ ଯୋଉଟା। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ରିପେଣ୍ଟ ଭଲ ନ ପାଇବା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେବା ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ ସେବା କରିବା? ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ କୃଷ୍ଣର ସେ ଯଦି ଖୁସି ହେଲେ, କୃଷ୍ଣ ମତିରସ୍ତୁ କହିଲେ କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ କହିଲେ, ସେଇଟା ବି ବହୁତ କୃପା। ଆଉ 99% ଯୋଉ କୃପା କହିଲେ 1% ସାଧନା, ସେଇଟା ବି ସତ ପୁରା। କାରଣ କୃପା ବଳରେ ହଉଛି, କାରଣ ସାଧନା କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଇଜିଲି ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ହିଁ ଇଏ। ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ସେଠୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ହେଉଥିଲା ତିଆରି, ତାଙ୍କୁ ସିଏ କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ କଣ କିଛି ଜପ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ଖାଲି ସେ ଗୋଡି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି। ସେଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତମେ ଠିକ କରୁଛ, ୟୁ ସୁଡ ଗୋ ଟୁ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ସିଓରଲି ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବ କହିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ କୃପା ତାଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ କେବଳ ଖାଲି ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କଲେ ଆମେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନୁହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା କି ଗୁରୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, that is the real secret। ସେଇଟା ହିଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଅବଜ୍ଞା କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣିବା କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ନ କରିବା, ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କେବେ ହେଇପାରିବନି, କି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି। କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ଖୁସି ହେବେନି ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କିଛି ଅପମାନ ହେଲା। ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ସେଟା ଦିଟା କେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମିଷ୍ଟର ସେଠୀ ହଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଥିଲେ ବମ୍ବେ ଟେମ୍ପଲ ଯୋଉ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ସେ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଟାଇପ କଣ ସେଟା। ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନ ରେ ବୋଧେ ବିଶେଷ ଜଣା ପଡିଲା କି ବୋଧେ କଣ କରାଯିବ ବୋଲି, ପଇସା ପତ୍ର ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୋଧେ କି କଣ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ହଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଭକ୍ତାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସାହେବ କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ସେଠୀ I tell you will go back to Godhead। ମିଷ୍ଟର ସେଠୀ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତ ହିଁ ନୁହେଁ, ତ ଚାଣ୍ଟିଂ କରିନି କିମ୍ବା ଜାଣିନି କିଛି ଏ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ବନେଇଦେବା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ମୁଁ କହିଛି ମାନେ you will definitely go back to Godhead। ଆଉ ଆରଟା ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଟେମ୍ପଲ କେସ୍, ଯୋଉଟା ମିଶେଇଦେଲେ ଆପଣ। ଗିରିରାଜ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, he is a disciple ଥିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ। ତ ସିଏ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଟେମ୍ପଲ କୁ ଚାର୍ଜ ହେଇଥିଲା ବନେଇବା ପାଇଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସମୟରେ। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବମ୍ବେ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଥିଲା, ମାୟାପୁର ଟେମ୍ପଲ ତ ହେଇଥିଲା। ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଟେମ୍ପଲ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ସେ ବନାବନି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାର୍ଜ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସିଲେ, ସେ କୁହନ୍ତି ଗିରିରାଜ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ତ ଚାଣ୍ଟିଂ ଠିକ ସେ ହଉନି କିଛି, ମୋର ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କରୁଛି ଚାଣ୍ଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ବା ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗୁଡି ବାଲି ଇଟା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, କୋଉଟା ଆସିବ କଣ ନାହିଁ, କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହବ। ସେତେବେଳେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ that is only chanting, that is also chanting। ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କେସ୍, ବଟ୍ ଏନିୱେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୁତାପା ପ୍ରଭୁ କିଛି ହାତ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସାର୍, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ଟୁ ଅଲ୍ ଡିଭୋଟିଜ୍। ମାନେ ଆଜି ସାର୍ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍। ମୋର ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଯେଟା ମୁଁ ଆଫ୍ଟର ଇନିସିଏସନ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ସବୁ ସମୟରେ କହନ୍ତି ମାନେ ମାୟା ଇଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନ ଥ୍ୟାଙ୍କଲେସ୍ ଜବ୍ରେ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ, ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ତପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଏଇଟା ବାର କହନ୍ତି 99% କୃପାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ
कृपाटा केमती मिलिबो आमे तेणु से प्राधान्य देवा उचित किंतु आमे वी मस्ट बी एक्सपर्ट इन आवर ओन वे केमती डिफरेंट एंगल डिफरेंट डिग्री रो माने समस्त एक्चुअली एफिशिएंट इन देयर ओन वे माने किए कोटा सर एक्सपर्ट किंतु किंतु सर एटार मोर निजस्व रिलेसन जा माने एक्चुअली आपण मते बार बार कहती किंतु मु इन्स्पायर फ्रॉम माय फैमिली मते पिला जो कर मत तो करिया पड़ो काली सारे सकाळे मो झील को छाड़िया गली हाईटेक पुणी चांटिंग कर पारे क्लास भी ठीक ठाक कर पारे अटेंड मत रेगुलाली अटेंड करिया क्लास भल लगे आपण से दिन संजीव प्रभु आपण डिस्कस करुले जो माने केमती सकाळे जो संजीव प्रभु कहले बोले सकाळे जो न करियो सेटा तुम सेटा बार बार करी से राति 12टा हो माने चांटिंगटा ठीक ठाक होनी मोर भी काली सेमती मु न शुए जाए से झील शुएनी कहला पापा सरला ना बोले सरीनी सरला परे मु ये करी तेणु माने सकाळे से मु सब माने प्रायोरिटी रखुची माने सब माने मॉर्निंग रे चांटिंगटा सारदेला बेलू पूरा दिन सारा पूरा एकदम से गोटे ड्राइविंग फोर्स भाया काम दौर तेणुक आम चेष्टा करवा से अनुजाई यहाँ करने द्वारा कौन लाभ क्षति हो विषय में मुझे कहूँ एक्चुअली माने माने एबे हठात किना हमर कन्वोकेशन हला किंतु हमर बहुत इंटरेस्ट माने जीवा बुलापाई किंतु हठात किना हला मुझे कौन करिया कौन नहीं माने एमती है माने भगवान सब व्यवस्था कला भाया जाऊ माने हमको दिल्ली भाई बहुत माने साहाଯ୍य कले माने आम भी माने किसी मुझे बहुत टेंशन देली मुझे सारी तो साढ़े व्यस्त आउ ना कौन करिया जाऊ दिल्ली भाई पूरा नहीं कि सी सब प्रकार से व्यवस्था करदे पुणी आसिया भी है गुरु महाराज दर्शन है मो मिसेस कहला माने माने फिलिंगटा मत शुणी एत खुशी लगे बोल जा बढ़िया एक्चुअली दी झील भी इंटरेक्शन कले आठी माने बुर्ला कथा सब विभिन्न विषय आलोचना करते माने ये जो माने अफुरंत आनंद ये जो माने शेयरिंगटा माने एत आमको माने आनंद दौर माने जोटा कि माने नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस तापर आउ गोटे कथा जमती माने मो झीर एडमिशन बेले माने एक्चुअली सार गोटे कथा कहते मत से बेस भल लगे माने भगवान सब व्यवस्था करदे माने मु माने माने छुटिया मुटिया भी माने मैनेज करियो डिफिकल्ट माने माने एमिति आपनर हे जीवो माने माने सी ऑटोमेटिकली सेटा जहाँ भी होना कहीं से भगवान सब व्यवस्था करिके सब माने गोटे कहते जमती कला मंदिर भुवनेश्वर एडवर्टाइज राइट टाइम राइट चॉइस से भगवान सब करदे कि कामटा हमको प्रायोरिटी करिया पड़ो आम जिते भी जहाँ देखिए असुविधा किसी गोटे फिल करी माने भगवान स्मरण कला माने मो भावे कौन गुरुदेव कहते ये शुद्ध गुरु एक्चुअली माने सी माने ऑटोमेटिकली किसी गोटे मेसेज गोटे आसीज ताने यहीटा माने माने गुरु परंपरा दे रहा द्वारा एत माने महानता तेणु बेसिकली तेणु जो कहते जो 99% कृपा सेटार आवश्यकता रही आम निश्चित भाव में जिते भगवान सह जोड़ी रहा ताला आम से निश्चित भाव में भक्ति मार्गर प्रवेश करने को माने आमको सुगम शोभनीय हम आउ यही रिसेंटली जो माने से दिन माने मुझे देखली क्लास सार आसिले टिके जॉइन कले तापरे पळे गले मु देखली सार प्राय बिजी अच्छा बुर्लारे आउ मु कहली ना ना आज मोर मु तो क्लास प्लास नहीं पारे आज मु नेबी आउ देखिए मुझे पिला कहली तुम जॉइन कर आज तुम तो घर अच्छ से दिन आसुले से तापर 2टा पिला जॉइन कले मु मोर मोर माने चेष्टा मते मु चेष्टा कली क्लास भी अटेंड कले तापर संध्यार आम घर को आसिले मुझे से बीट बैग सब देली मुझे ये कर तुम सब कौल ठाकुर दर्शन कर देख आमर एमती पूजा हुए तेणु ये आम जत्किंच आम सब चेष्टा करिया उचित कहीं समस्ते माने से भाया साधना नथिले आसी हेबनी तेणु आम ग्रुप रे जो एसोसिएशन रही माने बहुत भल एसोसिएशन आम बहुत अनेक जिनस चित्तप्रभु बहुत सुंदर भाव सब आलोचना करें साधना कर आलोचना कर वरिष्ठ भक्त आमर आशुतोष प्रभु अच्छा आउ दिलीप भाई आमर सब टाइम माने मार्गदर्शक भाया माने बाटे सारा माताजी कही ना ना से धर तुम फैमिली सब कर माने ये किए एक्चुअली दिग्दर्शन दब तेणु मु जो आम फैमिली कहले जी न करेंगे कि बाहर जड़े भक्त किए कहले निश्चित भाव में तेणु माताजी से कहले ना दिलीप भाई कहले एमती करा पड़ो मना सी युवा सब कर निश्चित भाव में देख आम जी एतिक आमको आनंद मिलूँ आहरी ताले कौन न मिल आम जब एमती एसोसिएशन रहा कि करवा निश्चित भाव में आमको आहरी परम आनंद आम अधिकारी हो पार तेणु आम आमर
जो सार सब समय कहती जे प्रार्थना और प्रयास जारी रखिबा आउ चेष्टा करिबा माने अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग टाको सारदेले सेटा हमर दिन सारा पूरा एकदम ड्राइविंग फोर्स भाया काम देव। तेणु सार को से अशेष धन्यवाद कृतज्ञता दंडवत प्रणाम माने आमको ये मार्ग आणिकी माने यहाँ आमर एक्चुअली बहुत लेट माने जो पिछला भिडियोटा देखला बेलू सार मुझे सब अपडेट करी मिनिमम एबे 300 प्लस हम मुझे सब ना लिखिनी ना लिखिले जाकि देखा कौ दिन कौन अच्छी तेणु सबुटा अपडेट करनी तथापि एबे भी 270 पाखापाखि हो गलानी सब अपडेट कले सार ना बहुत वीडियो आसे तेणु एगुड़ा सब क्लास माने जदि बा आमको ये लगुच ना आम गोटे माने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तेणु आमको आगु बढ़िया प्रेरणा तेणु से आपण को सार को अशेष धन्यवाद कृतज्ञता दंडवत प्रणाम आई समस्त डिवोटी को आम फैमिली तरफ दंडवत प्रणाम आमको एमती आशीर्वाद करूँ आमको आगु को बढ़िबार मान मार्ग को आहरी साहाय्य करंतु। थैंक यू सर। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हम सेदा 7:15 17 18 जॉइन कल का 5-7 दिन वेट कल का नो बडी वाज देयर देन आई क्लोज इट एक्चुअली सो बट इट लेट हिट बट एनीवे ये माता जी का बहुत सिंसियरली करथले जप एवं दिल्ली में नहीं जाइतले पहले प्रथम वरिड होतला मु कहले आप वरिड बनतु मु कहले दिल्ली में पचारतु से जीवार अछि से सेते पळे जिवे तेणु एनीवे सर आ गोटे कहबी सर आ गोटे छाड़ीगली सर गोटे माने आम कॉलेजर कन्वोकेशन थिला माने हाई प्रोफाइल गेस्ट सब आसते पुणी गवर्नर प्रोग्राम ता सते माने कॉलेज रे एमतिया कृपा हला आमको दिल्ली भाई देखछन माने कॉलेज रो बड वीआईपी गेस्ट जे गाड़ी रे आसन से गाड़ी हमको प्रोवाइड करिले माने फास्ट दिन तो नहीं कि छाड़िले पुणी सेकेंड डे रे से नराजी पठेले मुझे जाओ माने ये सब भगवान ही कृपा कर माने जोटा एक्सपेक्ट करिया कथा न माने सेगुड़ा भी तेणु माने भगवान सब अच्छा माने गुरुदेव अच्छा तेणु आम आमर किंतु आमको जी इंस्ट्रक्शन मिलूँ आम से करवा उचित तेणु आपण को अशेष धन्यवाद कृतज्ञता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर। थैंक यू माता जी कभी आई दूर रे आम वरिड थिलु तापर से पद्मावती माता जी पुण्यवती तांको मिलले गोटे रूम प्रभु देले मैं कहले दूर आनिबा छाड़िया व्यवस्था हम कहले संसार हम से गाटा ऑपरेशन को नहीं जास रानी से रहिले बहुत कार्जस्क रहिले तो घर पाखे रहिले तो हमको टेंशन कम हला बोले आण केम छाड़ केम जीवे लोक कौन परिसर केम पाई जेबे मो जेटली से रूम जो मिलला तांको आसे 10टा को समस्या दिले नहीं कहले नहीं से रूम में तो मिल जे पचार दो दिन समान आसी एडजस्ट कर पारिबे से रूम रे ताले ना ना हम एडजस्ट कर तो से पे से पाख रूम को पुणे लॉन्च पर से जाई समस्या आनी की रहिले सो दैट सब व्यवस्था भगवान करिवे माता सर माता जी को ले कहले आज्ञा सर माता जी कहले तुम माने तुम व्यस्त होने दिल्ली भाई सब समय सब कथा बुझुंट माने सी एत बुझुंट मुझे जा भल है तापर सर से जो पिलाटा जो जाइए आम झीर सांग जो मुझे आज पचारूली मुझे सी पिलाटा चांटिंग फाइटिंग करुँ ना नाई ये माता जी आम मो मिसेस कह सी एत देख माने आम ताको घरे कहीं ना माने माने डिवोटी नुहति किंतु सी एत निष्ठार सह कर जाओ भल है आम झील गोटे सांग मिलगला माने ता रूममेट आस्ते आस्ते सब माने ये तेणु आम जिते निष्ठार रहा निश्चित भाव में अन्य को इम्पैक्ट कर जाओ बहुत खुशी लगुच माने मत आउ टेंशन नहीं जाओ सर थैंक यू हमको एबे भी अपॉर्चुनिटी मिलु जदी सेठी से झियो अछि आउ जदी के पिला अछंती हमें मझे जाई कि भी तांको पाखे ओडी सुविधा हले डिस्कस करि परिया जदी तांको एटे असुविधा हुए ताले से माने भी हमरो इठी केते आसले भी घरे भी हमें डिस्कस करि परिया आगे आगे सर तार अपॉर्चुनिटी या कोठी भी हमें डिस्कस करि परिया तांको जदी हॉस्टल जे डिस्कस रे भी ऑब्जेक्शन होता है हमें पचारियो हमें भी से जाई किछि पिला को हमें ओडे अपॉर्चुनिटी हॉस्टल टा सर आज्ञा सर लेडीज हॉस्टल तार बहुत रेस्ट्रिक्शन सब बाहर केतले माने लेडीज हॉस्टल तो रेस्ट्रिक्शन सर आउ देखिए माने से जदी पिला सर संख्या बढ़िले माने जो चांटिंग करूछन एबे करि परिया करि तो प्लान करिया डिस्कस भी करि परिया आई करि परिया आज्ञा सर थैंक यू सर। हरे कृष्ण सर। बताना पावन प्रवेश अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव की जय। Please forgive any mistake I have faced from my side. Hare Krishna. हरे कृष्ण सर दंडवत।